सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं लेक्चर नंबर 4 देखेंगे इन कैपेसिटेंस। हम लोग कैपेसिटेंस चैप्टर पढ़ रहे थे। कैपेसिटेंस में अब तक हमने 3 लेक्चर देख लिए। वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता क्या है, देन फ्रॉम दैट वी हैव बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। और कैपेसिटर में हम लोग जो प्रिसाइसली स्टडी कर रहे थे दैट वी आर स्टडिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो मेजरली जो वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है। सो दैट्स वाई वी आर गेटिंग मोर एंड मोर इनटू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अभी तक हमने वी हैव सीन द capacitance of a parallel plate capacitor, and we have seen certain effects of parallel plate capacitor when it's connected with battery, when it's not disconnected with battery, what is the effect on capacitance, what is the effect on energy of the capacitor. So all those concepts we have already seen. और last lecture में we were seeing the concept of dielectrics in the capacitor. So dielectric की वजह से what's the polarization, what's the surface charge density of the bound charges. So all those concepts also we have covered. अभी तक हमने जो भी हमने कॉन्सेप्ट देखे थे वो सिंगल कैपेसिटर के लिए है, दैट इज़ गिविंग अस द वन सिंगल कैपेसिटेंस. आज हम देखेंगे वी आर गोइंग टू फर्दर आवर एनालिसिस ऑन कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. उसमें हम आज जो देखेंगे दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी ग्रुपिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, सो वी नीड अ डिजायर्ड equivalent capacitance. So we need a grouping of parallel plate capacitor either in parallel or in series, or not in parallel or not in series, just to get a desired results in terms of charge flow or in terms of capacitance of the whole circuit. So for that we need to arrange the capacitor in certain fashion. So there are one set of fashion which we call a series way, and one set of fashion we call a parallel way. So we'll try to understand कि series क्या है, parallel क्या है, और इन दोनों series और parallel combination में what is their equivalent capacitance. ठीक है, फिर हम same capacitor का we are going to see कि अगर dielectric हम multiple dielectric डाल दें, हमने already in the last lecture we have seen this concept, but today we are going to see from the perspective of series and parallel. ठीक है, अगर हम we are going to put multiple dielectric inside our parallel plate capacitor, so it can behave like a parallel, it can behave like a series combination. That is what we are going to explore with this capacitor with dielectric. ठीक है, उसके बाद हम लोग यही सीरीज़ और पैरेलल से वी आर गोइंग टू डू सम रिडक्शन ऑफ सम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स. ठीक है, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स जो हमारे होंगे उसके अंदर वी विल रिड्यूस डाउन विद दिस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सर्किट रिडक्शन एनालिसिस करेंगे हम लोग. ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया होगा, विल स्लोली रिड्यूस इट डाउन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इन दिस सी इक्विवेलेंट इन रिडक्शन. Then we are going to see the concept of switching of circuits. So ये भी concept काफ़ी अच्छा होता है. It is quite been intuitive concept also कि switching के there is a circuit से एक switch है, the switch is open. In that time what is my energy of capacitor, what are the charges on capacitor. ठीक है, और जैसे ही मैंने switch off कर दिया, then in that what is the energy of capacitor, what is the heat dissipated in the capacitor, what are the charges on the capacitor, what is my delta Q from the battery. So all those question we could able to see इन दिस कॉन्सेप्ट स्विचिंग ऑफ सर्किट्स. ठीक है, तो हम स्विचिंग ऑफ सर्किट्स हम एक तो देखेंगे विद दिस पैरेलल एंड सीरीज़ कॉम्बिनेशन के थ्रू. ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे पैरेलल और सीरीज़ के. फिर हम आगे फ्यूचर में अगर हमारे जैसे सर्किट्स कॉम्प्लेक्स होते रहते हैं ना हमारे, तो देन वी हैव टू डू द नोडल एनालिसिस. ठीक है, फिर हमारा सीरीज़ पैरेलल अगर हम करने चाहें तो इट विल टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम to solve a problem. ठीक है, so ultimately we need to reach the solution in the most efficient way. So for that we will switch to the nodal analysis. ठीक है, और nodal analysis is again a technique to reach to the equivalent capacitance. ठीक है, तो वो nodal analysis से we can get the equivalent capacitance, and from there we can then apply the switching of circuits along with the nodal analysis. So we'll see one or two question with the concept of nodal analysis, and we are doing the switching of circuits. ठीक है, और बाकी हम देखेंगे switching of circuits through series and parallel. फिर हम एक concept देखेंगे Wheatstone bridge का. it's a special type of circuit होता है कि अगर इस टाइप का आपको सर्किट मिल जाए, so that you can easily resolve it with a proper formula होता है, proper equation होती है, which if that is वो कंडीशन अगर रिजॉल्व हो रही है तो देन यू कैन सिंप्लीफाई दैट सर्किट. ठीक है, अगर वो कंडीशन हो रही है, वो कंडीशन देखेंगे क्या होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, एंड देन आफ्टर दैट द सर्किट विल बिकम फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू वेरी इजी टू सॉल्व. सो ये हमारे कॉन्सेप्ट है इन टुडेज लेक्चर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है,
सो लेट्स बिगिन। देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और द ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो सिंगल कैपेसिटर का हमने इक्विवेलेंट देखा था, अब हम देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स का कि हम मल्टीपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन सर्टेन फैशन लगाते हैं तो फिर देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट ऑफ दैट। तो जैसे कि हमने देखा सीरीज़ में क्या होता है मेरे कि माई बैटरी इज़ कनेक्टेड विद कैपेसिटर, और कैपेसिटर की एक प्लेट दूसरी प्लेट से कनेक्टेड है, फिर दूसरी प्लेट तीसरी से कनेक्टेड है, लाइक दैट इट इज़ कनेक्टेड। और जो फर्स्ट प्लेट का लेफ्ट है और जो राइट प्लेट का लेफ्ट है दैट इज़ कनेक्टेड विद माई बैटरी। सो दैट इज़ हाउ द सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, माई क्यू इज़ कॉन्स्टेंट, माई चार्ज कॉन्स्टेंट रहता है बट माई वोल्टेज वेरीज बिकॉज क्यू इज़ कॉन्स्टेंट, क्यू कॉन्स्टेंट है सबके बीच में। सो माई क्यू इज़ नथिंग बट माई सी वी। सो सी चेंज हो रहा है तो मेरा वी चेंज होगा, तो सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट पोटेंशियल difference will be different because my Q is same. Q कैसे सेम होगा, वोल्टेज क्या होगा, that is going to supply the charge from here। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आएगा, वो यहाँ से माइनस क्यू चार्ज आएगा। जो ये प्लस क्यू चार्ज आएगा ये जैसे हमने कैपेसिटर में देखा था, ये प्लस क्यू इस वाली प्लेट पे आएगा, अंदर वाली प्लेट पे माइनस क्यू आ जाएगा। और ये वाला जो मेरा सर्किट है, अगर हम देखें कि दिस वन, ये वाला जो मेरा पोर्शन है ये मेरा न्यूट्रल है, कोई चार्ज इस पे नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ पे मेरा माइनस क्यू चार्ज आ गया तो यहाँ पे मेरा फिर प्लस क्यू आएगा, और यहाँ पे प्लस क्यू आ गया तो फिर अंदर माइनस क्यू आएगा। सो दैट वे सारी की सारी जो प्लेट्स होती हैं वो प्लस क्यू माइनस क्यू से मेरी प्लस क्यू माइनस क्यू से सारी की सारे सब पे सेम चार्ज आ जाता है। सो वी कैन से द चार्ज इज सेम अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स इन सीरीज। ठीक है, सो दैट इज वन कॉन्सेप्ट, द चार्जेस here the charges is same across all the capacitor in series। ठीक है, so with that अगर चार्ज सेम है तो we will find out the individual potential। ठीक है, सबका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q is my Q, I know Q is nothing but my CV। ठीक है, from there V is my Q by C। ठीक है, so we'll take out the potential difference across all the capacitor, और इन सब का जो समेशन होगा that is nothing but equal to V। so ये कॉन्सेप्ट अब हम लगाएंगे। so हमें क्या चाहिए, इन सब का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। so that will be same like this। ठीक है, so that means कि V मेरा कनेक्टेड है और सेम सिंगल बस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से कनेक्टेड है। ठीक है, so that equivalent capacitance I need। ठीक है, so now what we will do, will apply the concept के सारा जो वोल्टेज पोटेंशियल है that will be equal to my this potential। so I put this V is equal to ये सारा पोटेंशियल, एंड वी आई कैन राइट इट डाउन इन दिस टर्म्स के वी इज़ नथिंग बट माई क्यू इसमें भी वही रहेगा जो इन सब में क्यू है मेरा, तो क्यू डिवाइडेड बाय सी इक्विवेलेंट। ठीक है, ये सी इक्विवेलेंट आ गया, और यहाँ पे जो मेरा वी वन कितना हो जाएगा, क्यू बाई सी वन, क्यू बाई सी टू, क्यू बाई सी थ्री। ठीक है, ये सारा आ जाएगा ऐसे, एंड क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा मेरा, और जो मेरा फाइनल आएगा इन द सीरीज इट इज़ वन बाई सी इक्विवेलेंट इज माई वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री अप टू वन बाई सी एन। सो दैट इज़ माई सीरीज, दैट इज़ माई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया ना, एक प्लेट ये दिस इज लाइक कि पॉजिटिव वन प्लेट इज कनेक्टेड, वन कैपेसिटर। ठीक है, कि एक प्लेट लेफ्ट प्लेट इज कनेक्टेड विद द राइट प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर, देन उसकी जो राइट प्लेट है दैट इज कनेक्टेड विद द लेफ्ट प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर, लाइक दैट इट इज कनेक्टेड। सो इन दैट दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन को और एक्सप्लोर करते हैं। इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट विल सी कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है दैट इज़ लेसर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ठीक है, अगर इन सबके इंडिविजुअल जैसे इसका 10 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 6 हो गया, सो जो इस सबका इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी लेसर देन दिस वैल्यू। सो वी कैन से 2 होगा, 3 होगा, लाइक दैट। ठीक है, लेस देन दिस वैल्यू। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेसर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ठीक है, अगर मेरे को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम चाहिए इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से, अगर मेरे को उसकी वैल्यू कभी कभार चाहिए होता है ना, मैं आपको यू नीड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद लेसर कैपेसिटेंस, तो यू कैन put lot of capacitor in series and from there you can get a equivalent capacitor which is lesser than the individual capacitances। यहाँ पे जो वोल्टेज हमने देखा था दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है मेरा, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माय कैपेसिटर। जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उतना छोटा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि मेरा क्यू रिमेन सेम, क्यू इज इक्वल टू सी वी है मेरा। सो क्यू हैज़ टू बी मेंटेन, तो जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उतनी कम उसका वोल्टेज ड्रॉप होगा, जितना छोटा कैपेसिटर होगा उतना ज़्यादा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। सो क्यू वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। सो अक्रॉस अगर मेरे मल्टीपल कैपेसिटर हैं, इफ़ माई मल्टीपल कैपेसिटर आर देयर, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस देम इज़ द रेशियो ऑफ 1/C1 1/C2 रेशियो 1/C3। ठीक है, सो इसको अगर इंडिविजुअल V1 निकालना है, सो V1 इज़ 1/C1 इन तीनों का समेशन इनटू जो मेरा नेट पोटेंशियल है टोटल अगर तीनों, सपोज दिस इज़ माई कैपेसिटर्स, अगर इस तरीके से मेरे तीनों हैं, एंड दिस इज़ माई वोल्टेज V, दिस इज़ C1 C2 C3, सो इसके अक्रॉस V1 V2
और V3, ठीक है. सो इन दैट केस इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट V1 कितना है, V2 कितना है, V3 कितना है, सो दैट्स वे यू कैन फाइंड आउट, ठीक है. नाउ अब देखते हैं इसमें कि अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर है, दैट इज़ क्वाइट ए कॉमन केस. ये काफ़ी जगह यूज़ होगा हमारा. वी कैन डायरेक्टली गेट इट. काफ़ी हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्पफुल रहेगा. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस केस. सो इस केस में है मेरा कि 2 कैपेसिटर हैं, दे आर इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड विद देर कनेक्टेड विद द बैटरी V, ठीक है. सो टोटल इन दोनों का V1 प्लस V2 कितना हो गया ये, और चार्जेस दोनों पे सेम रहेंगे. हमने देखा था ये यहाँ से ये यहाँ से Q चार्ज सप्लाई करेगा प्लस Q चार्ज, तो यहाँ पे प्लस Q आ जाएगा, अंदर इसमें माइनस Q आ जाएगा, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और शुरू में इन दोनों पे चार्जेस 0 है. सो यहाँ पे माइनस Q आएगा तो यहाँ पे प्लस Q आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस Q आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस Q हमने ऑलरेडी देख लिया क्योंकि ये चार्ज यहाँ से पुल किया है, तो यहाँ से ये ऐसे माइनस Q होगा, यहाँ पे प्लस Q यहाँ पे जाएगा, ठीक है. सो वी हैव ऑलरेडी सीन इट कि इन पे द चार्जेस विल बी सेम ऑन टू इट. चार्जेस सेम रहेंगे तो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कैपेसिटर इन पे वोल्टेज ड्रॉप्स डिफरेंट आ जाएगा. जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उतना छोटा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है. सो एक हमारा रिलेशनशिप ये मिल गया, C1V1 इज इक्वल टू C2V2, ठीक है. यहाँ से V1/V2 इज C2/C1. तो अगर मेरे को V1 चाहिए, V1 इज़ नथिंग बट माई, ठीक है. V1 क्या करेंगे, जो ये वाला अपोजिट वाला होगा C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू ये मेरा, ठीक है. सो दैट वे यू कैन डू, और यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. ये वाला जो है दो कैपेसिटर के लिए कर सकते हैं, बट डायरेक्टली यू कैन रिमेंबर V1 जो मेरा दूसरा वाला कैपेसिटर है, बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना, मेरा V1 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो दूसरे वाले कैपेसिटर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2. सेम वे V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V, ठीक है. सो दैट वे यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा मेरा दोनों के अक्रॉस, ठीक है. सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज़. अब हम देखते हैं पैरेलल में क्या होता है. पैरेलल में क्या होता है कि द वोल्टेज अक्रॉस ऑल ऑफ देम इज सेम, ठीक है. तो भी मेरे जो कैपेसिटर होंगे, पहले हमारा केस था सीरीज़ में, सीरीज़ के अंदर चार्ज विल बी सेम, और हमारा जब पैरेलल होगा उनके अंदर चार्जेस विल बी डिफरेंट. सो बट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर विल बी सेम. सो V इज सेम अक्रॉस ऑल ऑफ देम बट Q इज़ डिफरेंट. Q/C हो गया. सो Q इज़ डिफरेंट अक्रॉस ऑल ऑफ देम बट V इज सेम. सो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे कि दैट मीन्स कि एक कॉन्सेप्ट जो हम देखेंगे, जैसे सपोज यहाँ से Q सप्लाई कर रहा है, ठीक है, इफ द बैटरी सप्लाइंग Q, सो दिस Q विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द ब्रांचेस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है. और जो नेट Q आएगा, Q इज़ नथिंग बट माई Q1 प्लस Q2 अप टू Qn. तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. और दूसरा जो हमारा रहेगा, दैट इज़ जो मेरा चार्ज रहेगा, दैट इज़ Q1 इज़ नथिंग बट बाय जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, दैट इज़ C1 इंटू V, C2 इंटू V, बिकॉज माई पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ऑल ऑफ देम, ठीक है. ये सारा पोटेंशियल मेरा V के बराबर है, ठीक है. पोटेंशियल इज सेम इन द पैरेलल, ठीक है. पोटेंशियल सेम रहता है मेरा. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q1 मेरा आ जाएगा, Q1 इज़ नथिंग बट C1V, Q2 कितना आ जाएगा, C2V. सो विद दैट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू पुट कि जो नेट Q है मेरा, जो नेट Q सप्लाई हो रहा है, दैट इज़ नथिंग बट C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट इंटू V, दैट इज इक्वल टू C1V, C2V, C3V. V से V कैंसिल हो जाएगा, जो इक्विवेलेंट आ गया मेरा C1, जो समेशन ऑफ ऑल द कैपेसिटर आ गया. अगर मेरे को अब यहाँ पे क्या होता है मेरा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन माय इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. अगर मेरे को बड़ा कैपेसिटर चाहिए, आई विल कनेक्ट देम इन द पैरेलल, सो आई विल गेट अ कैपेसिटर ऑफ बिगर वैल्यू, ठीक है. सो यहाँ पे हमारा V सेम अक्रॉस ऑल ऑफ देम, ठीक है. Q वेरीज हेयर, तो यहाँ पे Q वेरीज हेयर होता है, तो जितना बड़ा कैपेसिटेंस होगा उतना बड़ा मेरा Q होगा, ठीक है. Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हेयर. और वहाँ पे क्या था मेरा Q, जो मेरा V था, बिकॉज Q इज़ कॉन्स्टेंट, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C. यहाँ पे जो मेरा Q है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C. जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उसके अक्रॉस उतना ज़्यादा मेरा चार्ज स्टोर होगा उसके अक्रॉस. तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल, अगर हम 2 कैपेसिटर वाला, जैसे हमने पिछले केस में वोल्टेज ड्रॉप देखा था, अगर हम यहाँ पे चार्ज देखें, तो यहाँ पे अगर टोटल चार्ज Q जा रहा है, इस पे C1 पे Q1 चार्ज है, C2 पे Q2 चार्ज है, तो इसके अंदर Q1 जो आएगा मेरा, इट इज़ C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू Q, नेट चार्ज जो होगा मेरा, ठीक है. सेम वे Q2 जो होगा मेरा C2, क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C1 प्लस C2 इंटू Q, ठीक है. सो ये दोनों के ऊपर चार्जेस आ गए, पोटेंशियल दोनों का सेम रहेगा मेरा, ठीक है. और सो दिस इज, अगर मल्टीपल चार्जेस हैं, सो इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस चार्जेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड.
राइट। तो ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब जो हमारे जो सर्किट्स होते हैं दैट इज़ नॉट जस्ट प्योरली पैरेलल और प्योरली सीरीज़ नहीं होते हमारे, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल। तो हम वी आर गोइंग टू गो इनटू द कॉम्प्लेक्स सर्किट्स वेयर लॉट ऑफ सीरीज लॉट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन आर देयर। सो वन वे टू रिजॉल्व इट इज़ टू गो थ्रू रिजॉल्व इट थ्रू द रिडक्शन मेथड, ठीक है। एक एक स्मॉल सर्किट को रिड्यूस करते जाएंगे, उसके अंदर अगर कोई पैरेलल है और कोई सीरीज़ है तो उसके अंदर का इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर फर्दर इक्विवेलेंट निकालेंगे। सो लाइक दैट वी विल स्टार्ट डूइंग द रिडक्शन, सर्किट रिडक्शन करेंगे हम लोग बड़े सर्किट से। अगर उससे भी नहीं होता दैट इज़ वन ऑफ द वे, अगर सीरीज पैरेलल कॉन्सेप्ट से भी नहीं होता देन वी हैव टू गो इनटू अनदर कॉन्सेप्ट्स विच इज़ कॉल्ड one of them is the nodal analysis, another one is the Kirchhoff voltage law, ठीक है। आज हम नोडल एनालिसिस तक देखेंगे। अब हम देखते हैं, पहले एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि अगर मेरा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया मैंने, ठीक है, तो दिस इज़ माय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड आई पुट मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक इनसाइड इट, ठीक है, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक डाल दिए। सो दिस ऑल के ये जो होगा दैट विल बी लाइक वन कैपेसिटर, दिस विल बी लाइक, ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी इन द लास्ट लेक्चर हमने देख लिया, दैट वी हैव सॉल्व इट इन अ डिफरेंट मैनर। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व इट इन अ सीरीज एंड पैरेलल। सो वी कैन कंसिडर दिस एज वन कैपेसिटर, दिस एज टू कैपेसिटर, थ्री कैपेसिटर, फोर कैपेसिटर, ठीक है, और ये मेरी प्लेट्स हो गई, डिफरेंट प्लेट्स हो गई। तो नाउ ऑल दिस फोर प्लेट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, ये सारी सीरीज में कनेक्टेड है। सो दैट वे आई कैन पुट कि दिस इज माई कैपेसिटर 1 2 3 4, आई पुट देम ऑल ऑफ देम इन सीरीज, ठीक है। अगर मेरे मल्टीपल मेरे डाइलेक्ट्रिक इफ आई पुट, और वो सारे के सारे मेरे फिल्ड अप हैं, आई कैन पुट इट लाइक दैट, ठीक है। और अगर मेरा यहाँ पे इफ़ आई एम हैविंग द वैक्यूम हेयर ऑल्सो, सो इंस्टेड ऑफ ई आर आई कैन पुट द एप्सिलॉन नॉट हेयर, ठीक है। सो यहाँ पे जो सीरीज़ का मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। सो यहाँ पे एक और है कि फील्ड जो है आपका परपेंडिकुलर टू इंटरफेस होना चाहिए, आपका इंटरफेस ये है और फील्ड आपका ये है, ठीक है। इंटरफेस ये है, इंटरफेस इज़ लाइक दिस ना, दिस इज़ योर इंटरफेस, ये इस तरीके का आपका इंटरफेस है और फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। सो इन दैट केस इट इज़ अ सीरीज़। अब जो आप देखेंगे कि इक्विवेलेंट आपका ये आ गया, इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट कितना है, 1/C इक्विवेलेंट इस हमने ऑलरेडी लास्ट में फॉर्मूला हमने लास्ट में डिराइव कर लिया, ये 1/C1 + 1/C2 अप टू 1/Cn, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस होगा दैट इज़ यू हैव टू टेक आउट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो होता है वो कि एप्सिलॉन नॉट A/D, ये मेरा कैपेसिटेंस होता है इन वैक्यूम। आप अगर अगर मेरा डाइलेक्ट्रिक का देखना है तो C आ जाएगा मेरा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D। अब इसके अंदर देखेंगे हमारा कि माय एरिया इज़ कांस्टेंट है, ठीक है। सारे डाइलेक्ट्रिक का जो एरिया होगा ये वाली साइड का, ये एरिया इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल द डाइलेक्ट्रिक, बट माय D इज़ वेरिंग है, ठीक है, सबका D वेरी कर रहा है। सो यहाँ पे जो मेरा फाइनल और D और मेरा ये एप्सिलॉन वेरी कर रहा है। सो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का जो मेरा इंडिविजुअल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा दैट इज़ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन RI, उसका अपना इंडिविजुअल परमिटिविटी और उसका एरिया तो सबका सेम रहेगा, एरिया इज सेम फॉर ऑल ऑफ देम बिकॉज इट इज़ इन द सीरीज, दे आर कनेक्टेड इन अ मैनर कि इन सबका एरिया सेम आ रहा है, और डिवाइडेड बाय जो इनका डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, सो दैट्स वे। So for each and every capacitor here this distance between the capacitor is varying, ठीक है। So on that basis you find out individual capacitance निकाल लो सबके and then you put it here to get the value of your equivalent capacitance, ठीक है। अगर आपका जो इंटरफेस है पैरेलल टू फील्ड दे रखा है, ठीक है, दिस इज योर इंटरफेस एंड नाउ दिस इंटरफेस इज पैरेलल टू योर फील्ड, दिस इंटरफेस इज पैरेलल टू योर फील्ड, सो दैट मीन्स के दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो यू कैन हैव इट लाइक दिस के ऑल दिस डाइलेक्ट्रिक्स, ये जो सारे डाइलेक्ट्रिक हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये वाले डाइलेक्ट्रिक हैं, इन सब में जो D है वो मेरा सबका सेम है, ठीक है, ये जो मेरा D है वो सबका सेम है, D इन सबका सेम है, बट माई एरिया इज़ वेरिंग। यहाँ पे इसका एरिया ये है, इसका एरिया ये है, इसका एरिया ये है, इसका एरिया ये है, तो मेरे इन चारों के एरिया वेरी कर रहे हैं, बट माई D इज सेम एरिया एंड माई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वेरिंग, बट माई D इज सेम इन दिस पैरेलल। तो पैरेलल के अंदर क्या होता है मेरा, पैरेलल के अंदर आई विल अप्लाई द C इक्विवेलेंस दैट इज नथिंग बट माई C1 C2 C3 अप टू Cn प्लस Cn। अब इंडिविजुअल कैसे निकालना है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन RI उसका इंडिविजुअल इनटू AI जो ये एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, द एरिया विच इज़ कवरिंग, और इसका जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है दैट इज़ D, ठीक है। यहाँ पे D इज़ कांस्टेंट बट एरिया इज़ वेरिंग। यहाँ पे याद रखना कि इन द सीरीज 1 द सेपरेशन इज़ वेरिंग, एरिया इज़ कांस्टेंट, ठीक है। सो ये हम डाइलेक्ट्रिक के साथ कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर कोई इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, जस्ट डायरेक्ट वन कि आपको जस्ट बीन गिवन के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखे होते हैं, और इसमें भी आपको दे कैन गिव यू द कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये आधा आधा ऐसे भर दिया और फिर ये ऐसे ऐसे भर दिया,
ठीक है, दे कैन गिव यू द कॉम्बिनेशन कि ये चारों मेरे पहले ये मेरे तीनों सीरीज़ में हो गए, ठीक है, और फिर ये मेरे दोनों पैरेलल में हो गए, ठीक है। इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो मेरा सी इक्विवेलेंट आएगा, और फिर ये तीनों के तीनों मेरे 1 2 3 ये तीनों मेरे पैरेलल में हो जाएंगे। सो दे कैन गिव यू इन एनी कॉम्बिनेशन वे, ठीक है, दे कैन गिव यू इन एनी कॉम्बिनेशन वे। सिंपल अगर आपको किसी भी तरीके से दे रखा है, सो यू विल जस्ट हैव टू अप्लाई दिस टू कॉन्सेप्ट्स, सो यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। और अगर ये थोड़ा ऐसे दे रखा होता तो इन दैट अगर इस तरीके के दे रखे होते, डायगनली दे रखे होंगे, सो दैट विल बी द केस ऑफ आवर इंटीग्रेशन, देन वी हैव टू इंटीग्रेट टू गेट द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। देखेंगे अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो इन द एडवांस क्वेश्चन जब हम देखेंगे उसके अंदर देखते हैं अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे डायगनली माई डाइलेक्ट्रिक इज़ बीन वेरिंग, कि दो डाइलेक्ट्रिक हैं, एक ऐसे पड़ा हुआ है और एक ऐसे पड़ा हुआ है, तो इन दैट बिकॉज हेयर द एरिया इज़ ऑल्सो वेरिंग, ठीक है, सो एरिया इज़ वेरिंग, सो वी हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो उसमें देखते हैं और इसमें सीरीज़ और पैरेलल में भी यू हैव टू सी के हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। सो विल सी दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस जहाँ रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अगर लगी हमें एडवांस में, विल सी इफ़ आई कुड एबल टू कम अक्रॉस एनी क्वेश्चन। बट अभी आज के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से जेई में आते नहीं हैं। जेई में पहले के टाइम पे व्हेन यू हैव अ जेई मेंस और जेई स्क्रीनिंग टाइप वाला जब होता था ना, तब एक एक क्वेश्चन जब 10-15 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, 4-5 क्वेश्चंस आते थे, एट दैट टाइम ओनली दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली कम्स के जहाँ पे मल्टीपल सेट ऑफ प्रोसेस, मल्टीपल सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स लगते थे। अब तो मतलब इट इज़ नॉट लाइक दैट, इतना नहीं आएगा। इसी में ही इसी सेट ऑफ कॉन्सेप्ट में ही दे डोंट वांट टू चेक योर कैलकुलेशन, या दे डोंट वांट टू चेक योर इंटीग्रेशन, दे और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है, दे जस्ट वांटेड टू चेक कि आपके फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है, आप कितना इन डेप्थ आपका कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है। तो बस वो चेक करते हैं, वो एक होता है कि अंडरस्टैंडिंग आपकी ऊपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, तो वो एक होता है कि ऊपर की अंडरस्टैंडिंग में कुछ एक क्वेश्चंस बना के आप सॉल्व कर लेंगे। फिर आपकी एक नेक्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आती है जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेते हैं किसी सब्जेक्ट को, तो आपके और थोड़ा वाइडर विजुअलाइजेशन हो जाती है, तो आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। उसी के अंदर ही सेम कॉन्सेप्ट आप तीसरी चौथी बार पढ़ रहे होंगे ना, आप देखेंगे कि आपको कुछ और नया समझ में आ रहा है उसको। आप चौथी पांचवी बार उस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ और नया विजुअलाइजेशन हो जाएगा। सो जितना आपको विजुअलाइजेशन होता जाएगा उतना आप कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जा रहे हैं। तो the IITs and all, the JEEs and all, JEE पेपर जो होता है वो जस्ट वांटेड टू चेक कि आपका कॉन्सेप्ट के डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, और वो तभी आएगी व्हेन यू डू अ कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम्स रादर देन एक कॉन्सेप्ट डू अ कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। ये वो ईदर थ्रू द क्वेश्चंस और रीडिंग द रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट से आपके और थोड़े विजुअलाइजेशन ओपन अप होते हैं। विदाउट कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी हो जाता है, बट उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट विल फर्दर इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग, तो वो भी कॉन्सेप्ट को ही बढ़ाता है। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम फाइंडिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये देखते हैं कॉन्सेप्ट। यही हमारा सक्सेसिव रिडक्शन मेथड है। हम लोग पैरेलल सीरीज़ एक सर्किट में छोटा छोटा करते रहेंगे, एक सर्किट देखेंगे। उस सर्किट कभी कभार होता है सर्किट थोड़ा इस तरीके से दिखाया हुआ होता है ऑन पेपर कि इट सीम्स टू बी बिट ट्रिकी, कि वहाँ तो दिखेगा ही नहीं आपको कि पैरेलल है या सीरीज़ में। बट इफ़ यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट के कैपेसिटर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल मेरा सेम है, तो आई कैन से इट इज़ इन पैरेलल, और अगर उनकी प्लेट्स कनेक्टेड हैं तो आई कैन से इट इज़ इन सीरीज़। तो वो उसी से ही आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन होगा। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। सो आई जस्ट गिव यू द कॉन्सेप्ट, आप यू कैन डू द कैलकुलेशन। सो यहाँ पे हम देखेंगे ये सर्किट दे रखा है, आपको निकालना है ए और बी के बीच में कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में, सो अगर मैं देखूँ ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर है, सो इट इज़ लाइक इन दोनों के बीच में इट इज़ कनेक्टेड एज अ सीरीज़। ये वाला कैपेसिटर अगर मैं ये इन दोनों के बीच में देखूँ तो इट इज़ कनेक्टेड एज अ सीरीज़, ये दोनों सीरीज़ में है। सो इफ़ दे आर इन सीरीज़ आई कैन डू द इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल देंगे विद द सीरीज़। वो कितना होगा 6 × 6 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ गया 2, ये 3 आ गया, ठीक है। ये मेरा 3 आ गया इन दोनों का। अब ये 3 है मेरा और ये भी 3 है, ठीक है। नाउ दे आर इन पैरेलल, अब ये दोनों पैरेलल में है ना, मेरे दोनों के अक्रॉस ये पोटेंशियल ये ए है, सपोज ये एक्स हो गया मेरा, तो दोनों के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल सेम है। 3 ये कितना हो गया 6 हो गया इन दोनों का, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने रिड्यूस कर दिया, ये वाला मैंने रिड्यूस कर दिया। मेरा जो फाइनल सर्किट बचा वो ये बचा, बस ये
और ये बचा मेरा, और मेरे को ए और बी के बीच में चाहिए। अब ए और बी के बीच में चाहिए, जो मेरा ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये दोनों सीरीज़ में हो गए, ये दोनों सीरीज़ में हो गए, और ये दोनों का सीरीज़ में निकालूंगा मैं। ये कितना आ रहा था 6 और ये 6, ये दोनों सीरीज़ में हो गए, तो इन दोनों का कितना आ गया मेरा 3 आ गया। ठीक है, इन दोनों का 3 आ गया, और फाइनल जो बचा मेरा ये और ये दोनों पैरेलल में आ गए। तो ठीक है, ये 2 और इनका जो आएगा ये यहाँ पे 3, ये दोनों पैरेलल में आ गए, 3 और 2 5। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू हैव टू अप्लाई द रिडक्शन, कि आप एक एक सर्किट को ब्रेक कर करके उसको सीरीज़ और पैरेलल के टर्म्स में यू जस्ट रिड्यूस डाउन द सर्किट। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। एक ये ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में नहीं, आप लास्ट में चले जाओ उसके, बिल्कुल ना यहाँ तक चले जाओ। तो अगर मैं देखूँ ये और ये, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में, अगर ये मेरा x है, ये मेरा y है, तो ये मेरा x और y के बीच में, दीज 3 व्हाट इज दिस इज इन सीरीज x और y के बीच में। सो आई कैन अप्लाई द सीरीज कॉन्सेप्ट है, ये तीनों को सीरीज में डाल के, सीरीज में क्या होगा मेरा, आई कैन अप्लाई 1/9 + 1/9 + 1/9, सो 1/9 दैट इज माई 1/c इक्विवेलेंट। सो विद दैट आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई सीरीज वाला आ गया। अब ठीक है, अब मेरा ये वाला x हो गया, ये मेरा y है। ठीक है, और ये x और y के बीच में ये मेरा इसका c इक्विवेलेंट आ गया, प्लस ये 6 हो गया। तो ये दोनों x और y के बीच में क्या आ गए, पैरेलल में आ गए। ये और ये वाला जो कैपेसिटेंस हो गए 6 वाला, और इन तीनों का जो मेरा इक्विवेलेंट आएगा c इक्विवेलेंट। ठीक है, इन तीनों के सीरीज से, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब इन दोनों को पैरेलल की तरह सॉल्व कर लेंगे, फिर अब इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, c इक्विवेलेंट अनदर आ गया। फिर नाउ अब मैं अगेन I'll टेक ये दोनों x और y ले लेते हैं, x और y। अब ये तीनों फिर से सीरीज़ में हो गए, फिर इन तीनों का ले लेंगे हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट, और फिर जो हमारा इक्विवेलेंट आएगा प्लस ये पैरेलल हो गए। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो गए, फिर एक इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर फाइनल जो आएगा मेरा ये ऐसे आ जाएगा c इक्विवेलेंट। अब ये जो मेरा a और b के बीच में निकालना है, दैट मीन्स दिस और दिस, ये तीनों मेरे सीरीज़ में हो जाएंगे, ये तीनों मेरे सीरीज़ में हो जाएंगे, एंड आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई द वैल्यू बिटवीन ए एंड बी। सो दिस इज है पैरेलल और सीरीज़। ये तो इजी है हमारे जो सर्किट्स हैं, तो इन दैट यू कुड एबल टू अप्लाई द पैरेलल एंड सीरीज़, तो आप उससे निकाल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर देखने में लग रहा है कि अजीब सा कॉम्बिनेशन दे रखा है, बट इट विल टर्न आउट के तीनों के तीनों पैरेलल। मैंने बोला था ना, पेपर पे ऐसा लगेगा कि ये तो कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा, बट व्हेन यू ब्रेक इट डाउन इनटू द वोल्टेजेस ना, अक्रॉस वोल्टेजेस आप स्प्रेड कर देंगे, तो यू कुड एबल टू सी। फॉर इंस्टेंस अगर ये आपका VA है, तो VA आपका यहाँ पे भी VA होगा। ठीक है, ये भी कोई भी नहीं है, तो ये दोनों भी VA होंगे, ये वाला भी VA होगा, ये वाला भी VA होगा। ठीक है, तो ये तीनों के अक्रॉस, यहाँ पे तीनों के लेफ्ट प्लेट, ये वाली प्लेट्स के अक्रॉस ये भी VA हो गया, और ये दोनों भी VA हो गए। ठीक है, अब VB देखते हैं, VB ये वाला हो गया, और इन तीनों प्लेट्स के क्रॉस भी हो गया। तो दैट मीन्स ये तीनों जो मेरे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं ना, ये तीनों मेरे ऐसे आ रहे हैं, ऐसे बन गया, तीनों मेरे सिंपल मेरे पैरेलल में आ गए। ठीक है, ये मेरा VA हो गया, और ये मेरा यहाँ पे VB हो गया, VB। ठीक है, आप देखेंगे कि पहला वाला अगर ये मेरा है, तो इसके अक्रॉस क्या है, मेरा VA इधर है, VB इधर है, तो ये मेरा VA इधर हो गया, VB इधर हो गया, तो तीनों के अक्रॉस VA पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ऑल ऑफ देम आर हैविंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सो ऑल ऑफ देम आर इन पैरेलल ओनली। ठीक है, सेम वे अगर हम इस वाले में देखें, तो यहाँ पे सेम आप वोल्टेज को ले जाओ, यहाँ पे VA आ गया। ठीक है, और ये बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे VA, ये भी VA हो जाएगा, और ये भी VA हो जाएगा। ठीक है, और आपको VA और VB के बीच में निकालना है। सो नाउ दिस इज़ माई VA एंड दिस इज़ माई VA। तो यहाँ पे ये सपोज x है, तो दैट मीन्स ये और ये दोनों पैरेलल में हो गए। ठीक है, ये VA और ये x है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए ना, ऐसे सपोज ये x आ गया, और ये मेरा VA आ गया। ठीक है, तो ये दोनों मेरे कैपेसिटेंस, ये वाला और ये वाला मेरा पैरेलल में हो गए। आई विल सॉल्व इट। ठीक है, इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट निकाल के देन आई विल बी हैविंग द इक्विवेलेंट ऑफ दीज टू, एंड फाइनली मेरे को A और B के बीच में चाहिए। सो दिस इज़ माई VA, यहाँ पे मेरा इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा, दिस इज़ माई VA, नाउ VB, दिस, ये तीनों आ जाएंगे मेरे। ठीक है, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ पे, और ये नाउ VA और VB का मेरे को चाहिए, तो ये दिस और दिस एंड दिस विल बी इन सीरीज। ठीक है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का इक्विवेलेंट C/2 आ जाएगा, और C/2 एंड दिस विल बी इन सीरीज, बिकॉज यहाँ पे VA होगा और ये VB हो गया। ठीक है, ये VA हो गया, ये VB हो गया, तो ये दोनों पैरेलल में आ गए, बट दिस विल बी इन सीरीज, ये वाला C एंड सॉरी इन दोनों का जो C इक्विवेलेंट आएगा, और ये C। ठीक है, दैट विल बी इन सीरीज, और उसके बाद VA और VB के बीच में चाहिए मेरा, तो और यहाँ पे भी VA और VB आएगा, जो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा, दैट विल बी इन पैरेलल। सो इनका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ये।
ठीक है। सो पहले हमारा होगा कि ये दोनों मेरा सीरीज़ में हो गए, ठीक है, ये दोनों मेरे सीरीज़ में हो गए, यस ये दोनों मेरे नहीं, ये दोनों मेरे पैरेलल हो गए, सॉरी ये दोनों पैरेलल हो गए, इनसे मेरा आ गया 2C, ठीक है। अब ये 2C और ये जो मेरा C है दैट विल बी इन सीरीज़, इससे मेरा थर्ड आ जाएगा, ठीक है। और इससे आफ्टर दैट जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके पैरेलल में होगा, एंड फाइनली आई गेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू गेट इट। एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, अगर सर्किट ही मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाए, जैसे V और VB के बीच में मेरे को इक्विवेलेंट निकालना है, सो यहाँ से मैं देखूँ तो द सर्किट इज़ शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है, द सर्किट इज़ शॉर्ट सर्किटेड। तो इफ़ द सर्किट इज शॉर्ट सर्किटेड देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस, सो चार्ज विल डायरेक्टली फ्लो फ्रॉम हेयर टू हेयर, चार्ज विल नॉट गो एनीवेयर, ठीक है, यहाँ पे नहीं जाएगा। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे मेरा सबका 0 आ जाएगा। इफ़ द चार्ज इज़ फ्लोइंग विदाउट पासिंग थ्रू देम देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। So A and B are directly connected, short circuited, so Q will flow directly from A P B, ठीक है। So in that case my equivalent capacitance comes out to be 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्किट है, उसको सर्किट को विद द सेम वे वी आर गोइंग टू सॉल्व पैरेलल सीरीज़ का, और पैरेलल सीरीज़ में जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि पोटेंशियल ड्रॉप होता है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर, और जो चार्ज होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर। तो ये कॉन्सेप्ट लगा के विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस सर्किट। इस सर्किट में हमारे को दे रखी है वी हैव बीन गिवन VAB जो है इन दोनों के बीच में मेरे को दे रखा है 4 वोल्ट, ठीक है। VAB 4 वोल्ट है, तो 4 है, तो मेरे को V पता है और C पता है, सो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू CV कितना आ गया 12 × 4 48, ठीक है। और ये दोनों मेरे सीरीज़ में है, तो जो ये 48 यहाँ पे होगा वही 48 मेरे यहाँ पे होगा। सो अब मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकता हूँ, बिकॉज करंट चार्ज मेरे को पता है 48 और कैपेसिटेंस पता है 6, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज़ 8। तो नाउ मैं A और C के बीच में मेरे को पोटेंशियल ड्रॉप पता लग गया, जो कि पहले मेरे को यही दे रखा था, बस इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप A और B के बीच में। अब मेरे को A और C के बीच में पता लग गया 8 + 4 12, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस A एंड C इज़ माई 12। बेसिकली अभी हमने स्टार्ट किया, बट हमें फाइनली बताना है कि E के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस पूरे सर्किट में, व्हाट इज़ माई टोटल वैल्यू ऑफ E, ठीक है। E के अक्रॉस मेरा टोटल कितना होगा, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो अभी हमारे को ये वाला सॉल्व हुआ है, हमारा ये वाली आर्म, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी ये वाली आर्म है, ये 6, ये वाली जो आर्म है मेरी, ये वाला सर्किट देखेंगे अब हम। इस वाले सर्किट में दीज टू आर इन, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों मेरे सीरीज़ में हैं, और इन दोनों के दिस इज़ माई पैरेलल, ठीक है। अगर मैं A और C के बीच में देखूँ तो दीज टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज़, और ये वाला जो कैपेसिटर है दिस इज़ इन पैरेलल, ठीक है। तो हम निकालते हैं व्हाट विल डू द इक्विवेलेंट निकालते हैं इन तीनों का, एंड देन विल फाइंड आउट के व्हाट विल बी द इसका इक्विवेलेंट निकाल के व्हाट विल बी द चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस, ठीक है। इसके अंदर तो मुझे चार्ज पता है, आई नो द चार्ज हेयर, विल फाइंड आउट द चार्ज इन बोथ ऑफ देम, ठीक है, क्योंकि चार्ज से निकालेंगे, बिकॉज विद दैट चार्ज वी कुड एबल टू सी द पोटेंशियल ड्रॉप। अब हम निकालते हैं, ये दोनों मेरे सीरीज़ में हैं, तो 12 and 6 देज आर इन सीरीज़, ठीक है। इन दोनों का आ गया 4, दे आर इन पैरेलल विद दिस, ठीक है। तो ये कितना आ गया 10 मेरा यहाँ पे दैट इज़ माई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये वाले पूरे सर्किट का मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस कि आई जस्ट ब्रेक इट डाउन कि ये मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे आ गया C इक्विवेलेंट, ये मेरा वोल्टेज ड्रॉप आ गई इन दोनों के अक्रॉस 12 वोल्ट। जो इस सर्किट में मेरी जो करंट होगा वही मेरा करंट इस सर्किट में होगा, वही मेरा इसमें होगा, ये सारा सेम करंट होगा ना। अगर मैं ये वाला सर्किट मेरा हट गया बिकॉज मैंने C इक्विवेलेंट निकाल दिया, ठीक है। अब मेरा सर्किट बस ये बचा है मेरा, दिस इज़ माई सर्किट, ये और ये वाला, ठीक है। इतना सर्किट बचा है, और मेरे को अगर इसके अक्रॉस करंट पता लग गया, सो मेरे को पता है इस वाली आर्म में भी पता है, इस वाली आर्म में पता है, इसमें भी पता है, इन चारों आर्म्स में मेरे को पता है, और इसके अक्रॉस मैं निकाल लूँगा। इट इज़ नथिंग बट माई जो मेरा C इक्विवेलेंट आया, और इसके अक्रॉस मेरे को पोटेंशियल पता है C × V। C इक्विवेलेंट कितना है मेरा 10, वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस मेरा A और C के अक्रॉस 12 था, 12 × 10 कर दिया मैंने 120, तो मेरा चार्ज फ्लो आ गया मेरा 120। मुझे पता है इसके अक्रॉस चार्ज फ्लो कितना है, तो मैं इन तीनों का मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल देता हूँ, ठीक है। और मेरे को चार्ज फ्लो पता ही है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय ये इन तीनों का जो मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। इसके अंदर मेरे को चार्ज फ्लो पता है, चार्ज फ्लो कितना है मेरा 120, और इसका जो कैपेसिटेंस है 5, तो यहाँ से मेरा वोल्टेज ड्रॉप मेरे को पता लग जाएगा। इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप आ गया VCE 120 डिवाइड बाई 5 24, ठीक है। यहाँ पे मेरा 24 आ गया वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे मेरा वोल्टेज ड्रॉप
12 आ गया और इसके अक्रॉस निकालना है वोल्टेज ड्रॉप। इसके अक्रॉस के लिए क्या करेंगे, विल रिजॉल्व दिस सर्किट, ठीक है। ये सर्किट को रिजॉल्व करेंगे, ये दोनों क्या है मेरे सीरीज़ में और ये इसके पैरेलल में है, ठीक है। 10 एंड 30 आर इन सीरीज़, ठीक है, ये मेरा सीरीज़ में है 10 एंड 30, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 7.5 और ये इसके पैरेलल है मेरा 4.5, ठीक है। तो टोटल आ गया मेरा 12। तो इनका इक्विवेलेंट, इन तीनों का मेरा इक्विवेलेंट आ गया मेरा 12। For all three, I've got the equivalent capacitance 12. Now अब capacitance आ गया मेरे को, चार्ज पता है मेरे को 120, so I'll do Q divided by C equivalent, that is 10 volt. तो मेरे को तीनों का क्रॉस पता लग गया, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे मेरा 24 है। I'll add all of three to get the value of this E. ये मेरे को निकालना था, E की वैल्यू निकालनी थी। I'll add all three of them and I'll get the value of this E, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी अभी जो हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अप टू दिस क्वेश्चन, वी आर सॉल्विंग इट थ्रू नॉट थ्रू दिस ऑल दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट थ्रू नोडल एनालिसिस ऑल्सो, बट राइट नाउ वी आर सॉल्विंग इट थ्रू पैरेलल एंड सीरीज के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। और जब कॉम्प्लेक्स होता है देयर वी विल अप्लाई द नोडल कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये स्विचिंग वाला कॉन्सेप्ट है। ए और बी कैपेसिटर्स आर इनिशियली अनचार्ज, एस इज ओपन, ठीक है। नाउ द वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल, जो मेरा पोटेंशियल है अक्रॉस ए एंड बी इज़ माई 360। मेरे को पहले तो निकालना है वी और सी और डी के बीच में व्हाट इज़ माई पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द स्विच इज ओपन। देन आई स्विच इट ऑफ, इसको मैंने क्लोज कर दिया। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स, सबके अक्रॉस मेरे को वोल्टेज निकालनी है। देन आई हैव टू फाइंड आउट द क्यू डेल्टा क्यू, दैट इज़ क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, जो कैपेसिटर के ऊपर जो पहले इनिशियल चार्जेस थे कितने चार्जेस थे और अब फाइनल कितने चार्जेस हो गए, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो पहले देखते हैं, पहले हम सिंपल जब ओपन है दैट मीन्स के दिस टू आर, ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में है और फाइनल इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है वो दोनों पैरेलल में है, ठीक है। जो मेरा नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा मेरा इन दोनों का, दिस इज़ माई इन सीरीज़, दिस इज़ इन सीरीज़ एंड दिस इज़ इन सीरीज़। सो इन दोनों का जो आएगा 3 × 6 डिवाइडेड बाई 9, 3 2 इसका आ गया ऊपर का, 2 इसका आ गया, तो दोनों का आ गया 4, ठीक है। नेट मेरा 4 आ गया। तो इसके अक्रॉस जो मेरा टोटल चार्ज फ्लो करेगा दैट इज़ कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया मेरा 4 और मेरे को वोल्टेज था मेरा दिस, सो Q इज इक्वल टू सी वी, जो इनिशियल जो फ्लो करेगा मेरा चार्ज 360 × 4, 360 × 4, दिस इज़ माई इनिशियल चार्ज विच इज़ फ्लोइंग। सो नाउ द चार्ज जो इन दोनों के अक्रॉस जो चार्ज आएगा दैट, ये तो ओपन है, सो इसके अक्रॉस जो जाएगा इसका जो नेट कैपेसिटेंस कितना है मेरा, दैट इज़ नथिंग बट दिस इज़ 3 × 6 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा। सो दैट मीन्स जो चार्जेस होंगे वो दोनों के अक्रॉस सेम जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर ये टोटल ये मेरा Q/2 जाएगा इधर भी और इधर भी Q/2 जाएगा, ठीक है। जो इसके अक्रॉस Q/2 जाएगा तो ये दोनों सीरीज़ में है तो यहाँ पे भी Q/2 जाएगा और यहाँ पे भी Q/2 जाएगा। सो चारों के अक्रॉस Q/2 ही जाएगा और Q/2 कितना आएगा मेरा 720, ठीक है। चारों के अक्रॉस मेरा ऑल 4 विल बी हैविंग द सेम चार्ज दैट इज 720, ठीक है। इनिशियली सब जब मेरा जब मेरा स्विच ओपन है तो चारों पे जो मेरे चार्जेस आएंगे दैट इज़ 720, ठीक है, दैट इज़ 720। अब निकालते हैं, हमें ये भी निकालना VCD, वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं, ठीक है। सो वोल्टेज ड्रॉप क्या था हमारा, वोल्टेज का हमने देखा था, वोल्टेज इज़ नथिंग बट इट इज़ यहाँ पे मेरा इसके अक्रॉस ये जो मेरी ये यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों के अक्रॉस जो मेरी वोल्टेज है 360, ठीक है। ये मेरी यहाँ पे ड्रॉप हुई होगी और यहाँ पे ड्रॉप हुई होगी। अब हम निकालते हैं 3 के अक्रॉस कितनी ड्रॉप हुई है और जो दूसरी होगी मेरी यहाँ पे आप इसके अक्रॉस जो होगी, सो विल सी के ये दोनों सीरीज़ में ना, तो इन दोनों के अक्रॉस जो टोटल होगी दैट इज़ 360। अब इन दोनों के अक्रॉस निकालते हैं कितनी कितनी ड्रॉप होगी। 3 के अक्रॉस कितनी होगी, तो मेरे को वी हैव सीन इन पैरेलल सीरीज़, जब हम सीरीज़ पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉप इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी 360 × 6 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब इसका ये वाला कैपेसिटेंस आएगा ना, तो यहाँ से कितनी वैल्यू हो गई, दिस इज़ 4, सो दैट विल गिव यू 240, ठीक है। यहाँ पे जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी, जितना छोटा कैपेसिटर होगा उतनी ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी, ठीक है, बिकॉज चार्ज नीड्स टू बी मेंटेन, Q कांस्टेंट रहेगा। सो यहाँ पे जो आ गया 240 आ गया, इसके 120 आ गया, ठीक है। ड्रॉप हुआ इसके अक्रॉस 240 का ना, सेम यहाँ पे अब देखेंगे ये इसका डबल है, तो यहाँ पे जो आएगा दैट इज़ नथिंग बट 120 ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे आएगा 240। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा VCD दैट इज़ 240 - 120, इट इज़ 120 आ जाएगा।
इन दोनों के बीच में, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव फाइंड आउट। 120 आ गया, ठीक है। अब स्विच क्लोज करते हैं, ये स्विच मेरा क्लोज हो गया, तो अब कैपेसिटर मेरे हो गए ये दोनों और ये दोनों पैरेलल में हो गए, ठीक है। ये क्लोज हो गया एंड दिस यू कैन कनेक्ट, यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस, ठीक है। ये इस तरीके का बन जाएगा, ये एक सिमेट्रिक बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों मेरे अब पैरेलल में आ गए, ये दोनों पैरेलल में है और दिस इज़ नोड बन गया, ये मेरा नोड अभी हमने पढ़ा नहीं है बट एनीवेज दिस इज़ काइंड ऑफ अ नोड बन गया मेरा, जिससे कोई मेरा पोटेंशियल कनेक्टेड नहीं है, जो बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। सो अब इसका हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो ये दोनों मेरे पैरेलल में आ गए एंड देन फाइनली ये दोनों भी पैरेलल में है और इन दोनों का जो आएगा मेरा कॉम्बिनेशन दैट विल बी सीरीज। इन दोनों पैरेलल में मींस 9 ही हो गया, 9 ही हो गया, ठीक है। अब 9 9 दोनों हो गए, इन दोनों के अक्रॉस दोनों सेम है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी यहाँ पे सेम आएगा। 360 था तो आधा पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, 180 इधर आ जाएगा, 180 इधर आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज कैपेसिटेंस दोनों के सेम है। सो ये मेरा इस तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा और फाइनल कितना आएगा, 4.5 आएगा मेरा फाइनल, जो मेरा सी इक्विवेलेंट आएगा दैट इज़ 4.5। इन दोनों का भी सीरीज़ में करना है ना, तो फाइनल 4.5 आएगा। बट हमारे को निकालनी थी पोटेंशियल अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर व्हेन द स्विच विल गेट क्लोज। जब मेरा स्विच क्लोज हो जाएगा तो इसके अक्रॉस भी 9 इसके अक्रॉस भी 180 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये हो गया 360, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 0। तो इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप है 180 का, तो ये भी 180 होगा, ये भी 180 होगा, सेम वे यहाँ पे भी 180, यहाँ पे भी 180। सो चारों के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल जो आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ 180, ठीक है, व्हेन द स्विच विल गेट क्लोज। अब मेरे को स्विच जब क्लोज हुआ है आई हैव टू फाइंड आउट द चार्जेस, वी हैव टू फाइंड आउट द चार्जेस। नाउ व्हेन द स्विच इज ऑफ, नाउ सी जो टोटल चार्ज मेरा आया सी इक्विवेलेंट इंटू वी, सी इक्विवेलेंट कितना आ गया मेरा, जो हमने देखा था इन दोनों का 4.5 आ जाएगा, 9/2 4.5 इंटू 360, तो दैट इज़ माई टोटल चार्ज विच इज़ फ्लोइंग थ्रू इट। नाउ द हाउ द चार्ज विल बी डिवाइडेड, दैट चार्ज विल बी डिवाइडेड इन अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जो मेरा चार्ज यहाँ पे जाएगा, सो पहले तो इन दोनों में डिवाइड होगा 3 और 6 में। सो 3 और 6 में किस तरीके से चार्ज स्टोर होगा, लाइक एज पर देयर कैपेसिटी वी हैव सीन ना, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। सो इसके अंदर जो चार्ज आएगा मेरा दैट इज़ टोटल चार्ज Q इंटू 6 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। टोटल चार्ज कितना है मेरा, जो इसके आएगा 6 डिवाइड बाई 9 1680, तो 1080 इसके अक्रॉस चार्ज आ जाएगा एंड इसके अक्रॉस आएगा 540, ठीक है। सेम यहाँ पे 1080 इसके अक्रॉस आ जाएगा 6 के अक्रॉस और 540 इसके अक्रॉस आ जाएगा, ठीक है। तो चार्जेस मेरे आ गए। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, पहले Q1 ये था, Q1 ये हो गया, सो दैट मीन्स द चार्ज डेल्टा Q यहाँ से निकाल लेंगे। सेम वे Q2 आप देखेंगे, Q2 ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q2 कि डिफरेंस कितना हो गया, जो चार्ज मेरा यहाँ पे कम हुआ दैट वेंट डाउन ऑन टू this one, ठीक है। So that's how you can calculate the value of your delta Q also, because you know the initial charges और final charges आपको पता लग गए, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द सेम कॉन्सेप्ट, बट इसके अंदर अभी हमने यहाँ पे हीट नहीं निकाली, वी हैव जस्ट सीन कि इनिशियल और फाइनल चार्जेस। अब मेरे पास यहाँ पे डेल्टा क्यू आ गया ना फाइनल और इनिशियल से। अब डेल्टा क्यू आते ही यू नो कि व्हाट इज़ योर वर्क एक्सटर्नल, वर्क बाय बैटरी इज़ नथिंग बट योर डेल्टा क्यू, जितना चार्ज फ्लो हुआ इंटू वी टाइम्स। अगर यहाँ पे मेरी बैटरी लग जाती सो इंटू वी टाइम्स, ठीक है। अभी मेरी बैटरी नहीं लगी, ओपन सर्किट था वी और वे के बीच में, तो यहाँ पे दैट इज़ माई वर्क डन बाय द बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी कहाँ जाता है, एक तो इनकी पोटेंशियल बढ़ाने में वो कैसे निकालते हैं, इनिशियल चार्जेस फॉर्मूला होता है ना Q²/2C। सो इनिशियल चार्जेस और फाइनल चार्जेस, या फिर 1/2 CV² अगर V मेरा कंटिन्यूसली कनेक्टेड है, ठीक है। सो इन दैट केस वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ कि जो ये V होगा दैट विल बी डेल्टा U बढ़ाने में जाएगा और मेरा हीट बढ़ाने में जाएगा। तो अब जो कॉन्सेप्ट देखेंगे हम उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, हीट बढ़ाने वाला, ठीक है। इसके अंदर भी ये दे रखा है कि पहले मेरे को पहले यहाँ पे कनेक्टेड है, फिर फर्स्ट केस में, सेकंड केस में मेरा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा स्विच। जब इस केस में कनेक्टेड है और फिर यहाँ से इस केस में कनेक्ट होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द हीट प्रोड्यूस कितना आएगा, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। हीट प्रोड्यूस निकालेंगे तो हीट प्रोड्यूस क्या होता है मेरा, डेल्टा H हमने देखेंगे, तो वर्क बाय बैटरी माइनस डेल्टा U, ठीक है। कि इनिशियल और फाइनल चार्जेस, या इनिशियल और फाइनल जब मेरे चार्जेस हुए तो इन दैट केस व्हाट विल बी माई डेल्टा U, और इनिशियल और फाइनल केसेस में व्हाट विल माई, ये डेल्टा U कैसे निकालता है, 1/2 CV², बिकॉज E इज़ कनेक्टेड वी कैन से 1/2 CV²। तो यहाँ पे मेरा पहले केस में C इक्विवेलेंट देखेंगे, दूसरे केस में C इक्विवेलेंट देखेंगे। अगर मेरा दोनों केस में डिफरेंट आ रहा है तो दैट मीन्स डेल्टा U आएगा, बट इस केस में क्या है कि मेरा C इक्विवेलेंट सेम आएगा, तो डेल्टा U विल कम आउट टू बी 0, बिकॉज C इक्विवेलेंट जो मेरा पहले केस में और दूसरे केस में कोई मेरा C इक्विवेलेंट चेंज नहीं होगा। सो इन दिस केस ओनली, बट बेसिकली यू हैव टू चेक
पहले हम देखते हैं जब ये 1 से कनेक्टेड है। सो दिस इज़ द फर्स्ट केस जब ये 1 से कनेक्टेड है, ठीक है। सो इन दिस केस क्या होगा कि ये मेरा दिस कैपेसिटर इज इन सीरीज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, ये मेरे पैरेलल हो गए, ठीक है, ये दोनों मेरे पैरेलल हो गए। सो फर्स्ट केस जो रेड वाली साइड के है, रेड साइड में C एंड C0 दे आर इन पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन C प्लस C0 हो गया इनका। फिर ये दोनों जो है मेरे सीरीज में है विद व्हाट C, ठीक है। इसका अब कॉम्बिनेशन कितना हो गया मेरा, C इक्विवेलेंट इसका आ गया पहले का C प्लस C0, C डिवाइडेड बाय 2C प्लस C0, ये मेरा C इक्विवेलेंट आ गया। अब चार्ज कितना आ गया, चार्ज इज़ नथिंग बट C इक्विवेलेंट इंटू E, ठीक है। यहाँ पे ये C इक्विवेलेंट डाल दो, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज मेरा जो इस सर्किट में फ्लो होगा, दैट इज़ माय टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज जो मेरा फ्लो होगा, यहाँ तो मेरा टोटल चार्ज Q आ जाएगा पहले वाले में, ठीक है। इस वाले केस में Q मेरा टोटल चार्ज आ गया। अब टोटल चार्ज जो मेरा डिवाइड होगा इस केस में यहाँ पे Q1 और Q2, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटेंस, हमने देखा था। सो Q1 कितना आ गया मेरा, C0 इसके प्रोपोर्शनल होगा मेरा C0 इंटू Q टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय C प्लस C0, ठीक है, टोटल इन दोनों का। सेम वे इसके अक्रॉस कितना होगा Q2 CQ डिवाइड बाय C प्लस C0, तो मेरे दोनों चार्जेस आ गए दोनों कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है। दोनों कैपेसिटर के ऊपर मेरे दोनों चार्जेस आ गए। इस वाले कैपेसिटर के ऊपर मेरा टोटल चार्ज रहेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ इन सीरीज। तो ये इस तरीके से बन रहा है मेरा, इस तरीके से बन रहा है मेरा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों मेरे पैरेलल में आ गए, और ये वाला जो है मेरा दिस इज़ दिस वन सीरीज़ में, ठीक है। तो इसके अक्रॉस चार्ज मेरा Q है टोटल नेट चार्ज, और यहाँ पे मेरा Q1 है, यहाँ पे मेरा Q2 है, इस तरीके से, ठीक है। हमने Q1 Q2 देख लिया। अब सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, जब मेरा यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर गया, ठीक है। अब सेकंड केस में यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर गया। अब ये दोनों मेरे पैरेलल में आ गए। नाउ इन द ब्लू केस दिस C0 एंड दिस C इज़ नाउ पैरेलल, और इसके जो सीरीज में है दिस इज नाउ दिस कैपेसिटर इज इन सीरीज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। सो अगेन मैं देखूंगा ये दोनों, इन दोनों का करूँगा मैं, कितना आएगा C0 प्लस C, और ये इसका देखूंगा इसके साथ सीरीज़ में। सो मेरा देखा यहाँ पे मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सेम आया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सेम आ गया। तो मेरा जो U होता है दैट इज़ नथिंग बट हाफ C इक्विवेलेंट टू V स्क्वायर। V मेरा दोनों केस में सेम है, ठीक है, इसमें भी E है, इसमें भी E है, तो ये दोनों केस में मेरा सेम है। इक्विवेलेंट भी मेरा सेम आ गया, सो U1 में और U2 में भी मेरा इक्विवेलेंट सेम आ गया। सो दैट मीन्स आई कैन से माई चार्जेस विल बी माई डेल्टा U कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। तो मेरा कोई चेंज इन एनर्जी नहीं हुआ है मेरा, ठीक है। तो जितना मेरा डेल्टा Q जो मेरा बैटरी के थ्रू गया है, जो वर्क डन बाय द बैटरी हुआ है इन मूविंग द डेल्टा Q चार्ज, वो सारा का सारा मेरा हीट एनर्जी में जाएगा। दैट इज़ व्हाट विल गेट इट फ्रॉम हेयर। अब हमने देखा कि सेकेंड केस में क्या हुआ यहाँ पे कि सेम चार्ज उस तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। इधर चला गया मेरा Q चार्ज बिकॉज इट इज़ नाउ कनेक्टेड हेयर लाइक दिस। सो यहाँ पे मेरा चला गया, ये यहाँ पे आएगा मेरा Q टोटल नेट चार्ज, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा Q1 Q2 और Q1 Q2। Q1 मेरा सेम रहेगा दोनों केस में, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। Q2 जो मेरा यहाँ पे होगा, पहले यहाँ पे था मेरा चार्ज मेरा Q था, पहले इनिशियली मेरा चार्ज यहाँ पे Q था, अब मेरा यहाँ पे आ गया चार्ज Q2। सो अब मेरा चार्ज में डिफरेंस हो गया ना। सो सम चार्ज वुड हैव फ्लोन फ्रॉम हेयर, यहाँ से चार्ज फ्लो हो गया, तो चार्ज कितना फ्लो हुआ मेरा, Q माइनस Q2 चार्ज यहाँ से ऑलरेडी फ्लो हो गया। सो दैट इज़ माई डेल्टा Q माइनस Q2 मेरा यहाँ से चार्ज फ्लो हो गया, ठीक है। इनिशियली क्योंकि चार्ज ये था, फाइनल मेरा इस पर चार्ज Q2 आ चुका है। सो चार्ज जो फ्लो हुआ यहाँ से Q माइनस Q2 चार्ज फ्लो हुआ। Q मेरे को पता है ऑलरेडी, आई हैव कैलकुलेटेड Q फ्रॉम हेयर, कि ये मेरा Q है, ये बाद में डाल लेंगे हम, कोई बात नहीं। और जो मेरा Q2 था, Q2 वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड CQ, ये मेरा आ गया C बाई C0। यहाँ से मेरा जो डेल्टा Q आ गया C0 Q C प्लस C0। अब ये जो डेल्टा Q है दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ गोइंग टू गिव अस द वर्क डन बाय द बैटरी। सो हीट हमने देखा, वर्क डन माइनस डेल्टा U मेरा 0 हो जाएगा बिकॉज वी आर हैविंग द, आप चार्जेस देखेंगे, चार्जेस में भी कोई चेंज नहीं आएगा, Q स्क्वायर बाई 2C भी करेंगे तब भी, और यहाँ पे हाफ C इक्विवेलेंट C V स्क्वायर किया, सो दैट इज ऑल्सो कमिंग सेम। सो दैट्स वाई डेल्टा U कम्स आउट टू 0। नाउ ऑल द हीट एनर्जी इज माई डेल्टा E जो मेरा ये था इंटू E, ठीक है, जो मेरा बैटरी का था। अब डेल्टा E है, जस्ट पुट द वैल्यू, यहाँ से हम Q की वैल्यू डाल देंगे, बस ये उठा के Q की वैल्यू कहेंगे। यहाँ पे पहले मैं C इक्विवेलेंट डालूंगा, इससे मेरा Q आएगा, और ये Q की वैल्यू आई जस्ट पुट इट हेयर, और फाइनल मेरा आंसर आएगा C0 E स्क्वायर डिवाइड बाई 2C प्लस C, ठीक है। सो दिस विल बी माई हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन दिस सर्किट व्हेन यू स्वैप्ड फ्रॉम स्विच 1 टू स्विच 2 पे जब आप स्वैप करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नोडल एनालिसिस, जस्ट 10 सेकेंड। सो अभी का जो भी हमने कॉन्सेप्ट देखा है दैट इज़ थ्रू आवर, जो हमने कॉन्सेप्ट सीरीज़ और पैरेलल में, और सीरीज़ और पैरेलल से वी विल फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अक्रॉस द पैरेलल
कैपेसिटर, और अगर हम सीरीज़ वाला देख रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इफ़ दे आर इन सीरीज़। तो वो वाले कॉन्सेप्ट से अभी तक हमने काम चला लिया था। अब क्या होता है ना, कई सर्किट होते हैं कि सीरीज़ और पैरेलल से इफ़ यू गो थ्रू सीरीज़ एंड पैरेलल इट विल जस्ट कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सो टाइम इज़ ऑल्सो द की फैक्टर, टाइम इज़ एवरीवेयर, इट्स अ की फैक्टर. It's one of the denominator which is common for each and everyone. So that test you have to if you have to rate anyone, or you have to see ke time should be the common denominator in your life also, के rate everything with respect to time only. So here also just apart from that, so इस concept में भी हम देखेंगे कि हमें के सेम चीज़ कम से कम टाइम में चाहिए. इवन इन योर एग्जाम ऑल्सो इफ़ यू कुड एबल टू सॉल्व इट विद लेसर अमाउंट ऑफ टाइम, इफ़ यू कुड एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, दैट इज़ द रिवॉर्डिंग वन. सेम वे कम टाइम में you could able if you could able to solve the if you could able to do the things in your life, so that means you are progressing. So time is the only denominator which is constant. That is you must consider, that is your progress or growth may always bring the time into it, ke if the time is utilizing or time is not utilizing. Anyways, देखते हैं इसमें नोडल एनालिसिस में कि वाई वी आर कंसिडरिंग द नोडल एनालिसिस, बिकॉज सीरीज एंड कॉम्बिनेशन में हमने देखा कॉम्प्लेक्स सर्किट में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व इट. सो विद द नोडल एनालिसिस इट्स अ टेक्निक विद विच वी कुड एबल टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन इन अ वेरी इजी मैनर. तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सर्किट की नोड क्या है. नोड क्या होती है, जहाँ से 2 और 3 प्लेट मेरी कनेक्टेड होती हैं, कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं कनेक्टेड होती है, बस 2 और 3 प्लेट कनेक्टेड है. तो ये मैं नोड कह सकता हूँ, ये वाला पॉइंट नहीं, क्योंकि यहाँ से एक्सटर्नल बैटरी कनेक्टेड है मेरी. ये वाला नोड कह सकता हूँ मैं, येस, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल बैटरी कनेक्टेड एंड देयर आर 3 प्लेट्स कनेक्टेड. ठीक है, 2 और 3 प्लेट होनी चाहिए, ये नहीं है सिंगल प्लेट ही हो, 2 और 3 प्लेट होनी चाहिए वहाँ से. सो यहाँ पे मेरी 3 प्लेट कनेक्टेड है एंड देयर इज़ no external source onto it, so we can say this is the node into here. तो इस तरीके से we'll find a node on to them. और फिर क्या करेंगे कि नोड का if we take, हम लोग क्या करते हैं, ये बैटरी जो है, इस बैटरी का एक पॉजिटिव साइड पे विल टेक इट 20 और नेगेटिव साइड पे 0. तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 20. ठीक है, ये यहाँ पे मेरा पोटेंशियल आ गया 20, यहाँ पे पोटेंशियल आ गया 20. नोड का हम लोग लेंगे एक्स पोटेंशियल ले लेंगे. ठीक है, नोड का एक्स पोटेंशियल ले लेंगे, और ये वाला कितना आ गया, बी का मेरा 0 पोटेंशियल. ठीक है, अब मेरा जो नोड वाला जो होता है, नोड पे मेरा नेट चार्ज 0 होता है. ठीक है, तो मेरा चार्ज जो यहाँ पे फ्लो होगा, यहाँ पे फ्लो होगा, यहाँ पे फ्लो होगा, इन तीनों का जो सम होगा दैट विल बी 0. सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू यूज. नोड पे नेट चार्ज विल बी 0. तो अब हम देखेंगे इसके अक्रॉस जो चार्ज होगा, इसके अक्रॉस जो चार्ज होगा, इसके अक्रॉस जो चार्ज होगा, उन तीनों को ऐड करके 0 कर देंगे. अब इसके अक्रॉस चार्ज क्या होता है, Q इजिकल टू सी इंटू वी. सी मेरे को पता है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, एक्स से ये 20 है, तो एक्स माइनस 20 इंटू कैपेसिटेंस 4 प्लस इसके थ्रू देखते हैं एक्स माइनस 20 इंटू 3 प्लस इसके अक्रॉस देखते हैं x माइनस 0 इंटू 5 इज इक्वल टू 0. यहाँ से मेरे x की वैल्यू आ जाएगी. जैसे आपकी x की वैल्यू आ गई, एज सुन एज यू गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, आपका ये 20 पता है, x पता है, इसका पोटेंशियल आ जाएगा, इसके चार्ज आ जाएंगे. यू गेट टू नो द चार्ज ऑन दिस, यू गेट टू नो द चार्ज ऑन दिस, यू गेट टू नो द चार्ज ऑन दिस. सो यू कुड एबल टू गेट द चार्ज ऑन ईच एंड एवरी कैपेसिटर. कितना चार्ज है, अगर आपको निकालना है कि डेल्टा क्यू, अगर आपको इसका इक्विवेलेंट निकालना है, सो इसका इक्विवेलेंट इस तीनों का तो इजी है, दोनों पैरेलल में, फिर इसके साथ सीरीज़ में, बट कॉम्प्लेक्स में भी इट कैन बी यूज्ड. इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं इन तीनों का, इट इज़ नथिंग बट इन तीनों का कितना हो जाएगा इस तरीके से आई कैन राइट इट डाउन, सी इक्विवेलेंट. और ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है मेरी. ठीक है, सो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट हो गया, चार्ज मेरा डेल्टा क्यू फ्लो हो रहा है. तो अब मैं यहाँ से सी इक्विवेलेंट क्या होगा मेरा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय 20, और ये डेल्टा क्यू क्या होगा, जो मेरी ये वाली बैटरी, ये वाले कैपेसिटर का चार्ज होगा, जो इससे कनेक्टेड है मेरी, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे दोनों का पॉजिटिव आएगा मेरा, ये जो होगा मेरा, तो Q1 प्लस ये वाला Q2. ठीक है, Q1 प्लस Q2 जो इन दोनों के ऊपर चार्ज होगा, ये वाला और ये वाला इस वाले पे, या इसका लेंगे हम Q3 का. ठीक है, ये तीनों सेम ही होंगे मेरे. सो हम लेंगे Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 ले लो आप. ठीक है, ये आपका चार्ज आ गया, डिवाइडेड बाय आप कर दो जो आपने यहाँ पे बैटरी लगाई है. बैटरी आप कोई भी लगा सकते हो, अगर जब भी आपको इक्विवेलेंट निकालना है, यू कैन राइट 10, 50, 80, कोई भी 100 कोई भी लगा लो, बट 100 से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, बिकॉज 100 से इट विल बी ईजी इन कैलकुलेशंस. ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ गया, Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय माई 20, देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. ठीक है, और Q1 और Q3 हमने कैसे निकाल लिया, जैसे मेरा x आया, x से मेरा Q1 पता लग जाएगा, Q2 पता लग जाएगा, सॉरी ये Q2 है नॉट Q3 है. सो और यू कैन राइट इट डाउन Q3 डिवाइडेड बाय 20 ऑल्सो. सो बोथ द वे यू कैन राइट इट डाउन. ठीक है, राइट.
अब हम देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, एक सेट ऑफ सर्किट होता है। अगर उस तरीके का आपको सर्किट मिल जाए सो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द लॉजिक जो हमारा एक डिड्यूस करके आता है कि इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर कि उसको डायरेक्टली यू कैन अप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द कंडीशन कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस, एक तो होता है जस्ट व्हीटस्टोन ब्रिज के, ये हो गया, ये जनरल व्हीटस्टोन ब्रिज है कि आपका दो कैपेसिटर यहाँ पे पैरेलल में है, फिर एक बीच में एक आर्म है और फिर ये दो कैपेसिटर आ गए, ठीक है, ये आपका, और ये कनेक्टेड विद द बैटरी आ गया, ठीक है, ये आपका जनरल व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। एक आता है आपका स्पेशल केस कि वो कंडीशन आपकी सॉल्व हो रही है, देन इन दैट केस यू कैन टेक दिस, ये वाला जो है दैट इज़ Vx इज इक्वल टू Vy हो जाता है उस केस में, ठीक है। दैट मीन्स यू कैन बाईपास दिस थिंग दैट सीम्स टू बी लाइक एन ओपन, ठीक है, बिकॉज दोनों के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल सेम है, Vx इज इक्वल टू Vy, तो यहाँ पे कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, यू कैन कीप इट ओपन, ठीक है, ये ओपन कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये दोनों मेरे सिंपल सीरीज़ में आ गए, ये दोनों सिंपल सीरीज़ आ गए और फिर ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेरा पैरेलल में आ गया। सो बट ऑन दैट, उसके लिए हमारे को एक कंडीशन होती है, दैट इज़ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। दैट कंडीशन वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी कि इन दोनों के बीच में जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की मैंने कंडीशन बता दी कि वो इन दोनों के बीच में Vx शुड बी इक्वल टू Vy, ठीक है, Vx इज इक्वल टू Vy होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू पुट इट वाइल कैलकुलेटिंग कि Vx इज इक्वल टू Vy पुट करेंगे तब वो मेरी कंडीशन आएगी। वो कंडीशन क्या होती है, सपोज ये कैपेसिटेंस 1 है, ये कैपेसिटेंस 2 है, ये कैपेसिटेंस 3 है, ये कैपेसिटेंस 4 है, तो जो मेरी कंडीशन आएगी मेरी ये आ गई Vx इज इक्वल टू Vy, ठीक है। उस केस में क्या होता है मेरा, वो कब आती है मेरी Vx और Vy के बराबर सिचुएशन, ठीक है, किस केस में आती है Vx और Vy, जब मेरा C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, जब ये वाली कंडीशन होती है। दैट मीन्स ये वाला डिवाइडेड बाय दिस, ये वाला डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, जब ये दोनों मेरे इक्वल हो जाए तो C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, जब ये कंडीशन आती है तब मेरा दिस Vx इज इक्वल टू दिस Vy, तब ये मेरा Vx जो होता है Vy के बराबर हो जाता है। देन आई कैन मेक दिस सर्किट ओपन, इसको ओपन कर दो एंड यू कैन ईजिली रिजॉल्व द सर्किट थ्रू बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कंडीशन। अगर वो नहीं होता तो देन यू विल हैव टू सॉल्व इट थ्रू नोडल एनालिसिस, बिकॉज विदाउट नोडल इफ यू आर गोइंग टू डू तो इट विल बी अ ट्रिकी थिंग, टाइम लेगा। सो इधर यू कैन सॉल्व इट थ्रू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट नोडल पढ़ लिया, विल सॉल्व इट थ्रू द नोडल, ठीक है। अब मेरे को इसका इक्विवेलेंट सर्किट, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो हम क्या करते हैं 100 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं और 100 वोल्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहाँ पे मेरा 100 आ गया, यहाँ पे 100 आ गया, और इधर मेरा 0 आ गया, इधर 0 आ गया, ये मेरा नोड बन गया, ये मेरा एक और नोड आ गया। तो इस नोड को मैंने वोल्टेज दे दिया x, इस नोड को मैंने वोल्टेज दे दिया y, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस नोड पे नेट चार्ज मेरा 0 होगा, इधर जो जा रहा होगा, इधर जो जा रहा होगा, इधर जो जा रहा होगा, तीनों का नेट चार्ज 0 करूँगा। सेम वे इस नोड का इधर जो जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, तीनों का नेट चार्ज 0 करूँगा। तो मेरी दो इक्वेशन आ जाएंगी, x और y में दो अननोन है, आई कुड एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ x और y, ठीक है। अब अगर मेरी अननोन कैपेसिटर, अगर मैं C1 C2 C3 C4 लिखता, देन इन दैट केस जो मेरी Vx माइनस Vy को मैं दोनों को इक्वल कर देता है, Vx इज इक्वल टू Vy, इन दैट उसको सॉल्व करके ही मेरी ये सिचुएशन आती है C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, ठीक है, उसी को सॉल्व करके ही आती है। तो अभी हमने यहाँ पे निकालते हैं Vx, सिंपल है, यहाँ से आप देखो ये इधर इस साइड में करंट, इस साइड में आपका चार्ज कितना फ्लो हो रहा होगा, x माइनस 100 इंटू 4, इधर और होगा x माइनस वाई इंटू 4, इधर और होगा x माइनस 0 इंटू 2, ठीक है। यहाँ से मेरी x और y में एक इक्वेशन आ गई। अब इस वाले के लिए देखते हैं, इधर होगा y माइनस 100 इंटू 2, और इधर जा रहा होगा y माइनस 0 इंटू 8, और इधर जा रहा होगा y माइनस एक्स इंटू 4, ठीक है। ये मेरी दूसरी कंडीशन आ गई। इससे मेरे x और y की दो इक्वेशंस आ गई, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई y की, तो आपके ये दोनों अलग आ रहे हैं, Vx अलग आ रहा है Vy का। अगर ये मेरे इस कंडीशन के होता है C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, ठीक है, देन Vx वुड हैव कम इक्वल टू Vy, ठीक है। ये जनरल सिचुएशन है। तो आपका ये आ गया x और y, ठीक है। अब आपका जो चार्ज होगा, आपको अगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए तो आपको चाहिए ये वाला चार्ज एंड ये वाला चार्ज, तो Q1 प्लस Q2, ठीक है। आपके पास ये आ गया, तो आप ये x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो आप इसके अक्रॉस चार्ज निकाल सकते हैं, बिकॉज यू नो द पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस, Q इज इक्वल टू CV करके, ठीक है। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस लिया, मल्टीप्लाई बाय 4 किया, आपको इसका चार्ज पता लग गया। आप इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज ऐड कर देंगे Q1 प्लस Q2, ठीक, बिकॉज वही फ्लो कर रहा होगा ना यहाँ पे, वही फ्लो Q जो मेरा आ रहा होगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग बिटवीन Q1 एंड Q2, इन दोनों में डिवाइड हो रहा होगा ना, सो दैट इज़ व्हाट Q मेरे को निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 100, इट इज़ नथिंग बट बाय C इक्विवेलेंट। तो मेरा चार्ज यहाँ पे Q, आप Q3 प्लस Q4 भी ले सकते हो, ये वाला भी और ये वाला भी, बिकॉज दोनों ही सेम आएंगे, ठीक है। सो Q1 प्लस Q2 या Q3 प्लस Q4 लेके, सो फाइनल आपका आ गया Q3 आपने निकाल लिया,
ठीक है। यहाँ पे Q3 ईजी है बिकॉज ये x है और ये 0 है, सो यू कैन ईजिली टेक इट आउट, यू कैन ईजिली x माइनस, सो x माइनस 0 तो x इंटू ये हो जाएगा सिंपल, और y इंटू ये हो जाएगा सिंपल, सो यू कैन गेट आउट Q3 एंड Q4, और Q3 एंड Q4 इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा Q, पुट द वैल्यू हेयर एंड गेट द वैल्यू ऑफ योर C इक्विवेलेंट। और हमने देखा बैलेंस सिचुएशन में क्या होता है, ये वाली Vx विल गेट इक्वल टू Vy, और वो कब होता है, जब मेरा ये वाला कंडीशन आ जाए C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। और इस केस में देखो आपका है क्या, यहाँ पे 4/2 है, यहाँ पे इज इक्वल टू 2/8, एंड विच इज़ नॉट एट ऑल इक्वल, ये यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1/4 आ रहा है, इट्स नॉट एट ऑल इक्वल। अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 4 होता, और यहाँ पे 4 होता, और यहाँ पे 8 होता, ठीक है, इन दैट केस 2/4 इज इक्वल टू 4/8, 1/2, तो इन दैट केस ये Vx इज इक्वल टू Vy आता, और आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता, और ये आप हटा सकते थे, फिर ये हटा के यू कुड एबल टू सॉल्व, ठीक है। सो दैट वे यू कुड एबल टू सॉल्व। सो हमने देखा कि व्हीटस्टोन ब्रिज अगर हमारा बैलेंसिंग सिचुएशन में है तो यू कैन रिमूव दिस Mn, आप इसको हटा सकते हैं, और उसके बाद क्या होगा, ये दोनों आपके सीरीज़ में हो जाएंगे, C1 एंड C3 विल बी इन सीरीज़, ठीक है, और C2 एंड C4 विल बी इन सीरीज़, और फिर ये दोनों के जो इक्विवेलेंट आएंगे दोस विल बी द पैरेलल। और आपको ये डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा, आपको इस तरीके से भी, ये तीनों भी मेरे व्हीटस्टोन ब्रिज की ही सिचुएशन है, आप देखेंगे तीनों में व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा होगा कि इसी को इस तरीके से प्रेजेंट किया है VA, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों ऐसे हो गए ये वाले, ठीक है, फिर ये बीच वाली ये वाला आ गया, ठीक है, और फिर इधर से B से भी ये दोनों ये वाले आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको प्रेजेंट कर देंगे। अब यहाँ पे आप चेक करना C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 है, अगर वो है तो आप ये वाला हटा देंगे, ठीक है, ये वाले हटा के यू कुड एबल टू सॉल्व द कंडीशन। सेम वे अगर आपको इस तरीके से दे रखा है तो आपको ये देखेंगे ये दोनों पैरेलल में जा रहे हैं, फिर एक ये कनेक्टेड आ रहा है आपका, ठीक है, और फिर ये दोनों फाइनली मेरे पैरेलल में इसके अंदर जा रहे हैं B में। तो आप ये देखो, अगर ये C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 आ रहा है, देन यू कैन रिमूव दिस थिंग, इसको रिमूव करेंगे आप, तो यू कुड एबल टू सॉल्व, ये आपका सीरीज़ में आ जाएगा, ये आपका सीरीज़ में आ जाएगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में आ जाएगा, और ये फाइनल इन सब के पैरेलल में आ जाएगा, यू कुड एबल टू सॉल्व द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। सेम इस तरीके से भी दिया जा सकता है आपको, A और A से आपकी 2 पैरेलल में जा रहे होंगे, और फिर B से 2 पैरेलल में जा रहे होंगे, ठीक है। अब इन दोनों, ये दोनों के बीच में एक कनेक्ट होगा। अब ये अगर आपका C1/C2 अगेन इज इक्वल टू C3/C4 है, then this potential will be same, तो इसके अक्रॉस you can remove it and you can easily solve it। so इस तरीके से भी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिए जा सकते हैं in a change of कि वो मतलब different way में it can be represented, but if you find out it will be a व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लैडर नेटवर्क का। लैडर नेटवर्क का मतलब हो गया कि इट इज़ एन इनफाइनाइट सर्किट, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड इफ़ यू कीप ऑन सीइंग कि ये वाली जो मेरी आर्म है दैट विल बी कीप ऑन रिपीटिंग, दिस वन विल बी कीप ऑन रिपीटिंग, ये इनफाइनाइट तक रिपीट करती रहेगी। इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इस पूरे का हम लोगों ने कहा कि इस पूरे का जो मेरे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सपोज x आ गया, ठीक है, अब मैंने इसको निकाल दिया, बाकी सबका भी तो x ही होगा क्योंकि बिकॉज इट इज़ गोइंग अप टू इन्फिनिटी, तो मैं क्या करूँगा इसकी जगह यहाँ पे x डाल दूंगा, बस ये मेरा x हो गया, ठीक है, ये x हो गया, ये 2 हो गया, ये एक ब्रांच ये मेरी 1 हो गई, और ये मेरा इसका इक्विवेलेंट आ गया, और b के बीच में c इक्विवेलेंट भी मेरा x है, ठीक है। सो दैट्स हाउ वील डू कि नाउ इसमें क्या हो गया, ये दोनों मेरे सीरीज़ में आ गए और इसके पैरेलल में मेरा 1 आ गया, तो मैंने ये किया 2x, ये मेरा 2 और x मेरे सीरीज़ में आ गए, 2x/2 + x इंटू ये मेरा पैरेलल में आ गया +1, दैट विल बी इक्वल टू माई जो मेरा c इक्विवेलेंट इन इट। तो विद दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, यू सॉल्व इट, यू गेट द वैल्यू लाइक दिस। तो आपको देखना है कौन सी आपकी रिपीट कर रही है, जो आपका रिपीट कर रहा है सर्किट वो कैन पुट इट, आप टोटल को x ले लो, ठीक है, और जो आपका सर्किट रिपीट कर रहा है दैट विल ऑल्सो विल गेट इक्वल टू x, और उसके बाद यू कैन रिजॉल्व द सर्किट इन दिस मैनर, ठीक है। फिर हम आते हैं कुछ एक सिमेट्रिक सर्किट होते हैं, आप देखोगे इसके अंदर वर्टिकल सिमेट्री भी है, ये वाली ऊपर की साइड में भी सिमेट्री है, और आप देखेंगे इधर की डायरेक्शन में ऐसे भी सिमेट्री है, जो इधर वाले हैं वो ऐसे हैं, और आप इस ऐसे देखेंगे ये वाले और ये वाले भी कैपेसिटर हैं, दीज आर इन सिमेट्री, ठीक है। इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको या तो फोल्ड कर दो ऐसे, ऊपर वाली जो ये वाला है इसको यहाँ पे ले आओ, इसको फोल्ड कर दो, इसको फोल्ड कर दो, तो ये जो ये हो जाएंगे, ये ऐड अप हो जाएंगे आपके कैपेसिटेंस, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या होता है आपका, आप नोडल एनालिसिस में you just see कि with the nodal analysis you don't have to put extra variables x और y, multiple variables नहीं करेंगे, lesser number of variables से काम चल जाएगा। अगर मेरे को इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इसको हम करेंगे रिड्यूस, इसके अक्रॉस 100 वोल्ट की बैटरी लगाई, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, सपोज मैं यहाँ पे x ले रहा हूँ, ठीक है। x का मतलब है कि ये जो मेरा
यहाँ पे जो चार्ज आ रहा होगा, यहाँ पे जो चार्ज आ रहा होगा, यहाँ पे जो चार्ज आ रहा होगा, बिकॉज सारे सेम है और सारा मतलब मेरा सर्किट जो है इट इज़ सिमेट्रिक। तो जो मेरा चार्ज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। सपोज़ ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, तो वही मेरा यहाँ पे भी ये मेरा Q2 आ रहा होगा, यहाँ पे Q1 आ रहा होगा, यहाँ पे Q3 आ रहा होगा, ठीक है। ये नेट मेरा तभी वापस यहाँ पे नेट Q आ रहा होगा, यहाँ पे जो Q मेरा एंट्री कर रहा है। सो जो मेरे चार्जेस यहाँ पे होंगे वही मेरे चार्जेस मेरे यहाँ से एग्जिट कर रहे होंगे, तो बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द सर्किट। अगर हम देखें सो देयर इज अ सिमेट्री इन द सर्किट। सपोज यहाँ से आपका चार्ज जा रहा है, इसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी, फिर सेम कैपेसिटेंस है उसके अक्रॉस ड्रॉप होकर यहाँ पे 0 हो गई। सो दैट मीन्स 100 जो है पहले ड्रॉप हुआ ऑलमोस्ट 50 पे, और 50 से सेम कैपेसिटेंस है ना, बिकॉज वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे दोनों का सेम है, तो दैट मीन्स दोनों के अक्रॉस मेरा सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सो यहाँ पे मैंने 100 का 50 ड्रॉप हुआ पहले, और 50 से आपका 0 हो गया, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वही यहाँ पे करंट फ्लो करना चाहिए, ठीक है। हमने देखा था ना, इसके अक्रॉस जो नॉट द करंट चार्ज, इसके अक्रॉस जो चार्ज होगा वही यहाँ पे चार्ज फ्लो करेगा। सो दैट मीन्स दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी सेम, Q=CV होता है, यहाँ पे भी हो, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो मेरा आएगा दैट कम्स आउट 50, ठीक है। सेम वे अब हम देखते हैं ये वाला कि यहाँ पे अगर मैं इसको x ले लूँ एक, ठीक है, तो आई डोंट हैव टू पुट इट y, तो y विल सी कि अगर मैं इसको x ले लूँ, जो मेरा यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा होगा दैट चार्ज इट्स नथिंग बट जो मेरा ये वाला चार्ज होगा, ठीक है, जो मेरा ये वाला चार्ज किया होगा वही वापस आके यहाँ पे जा रहा होगा ना मेरा चार्ज, ठीक है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो ये जो मेरा x-0 हो रहा होगा, इसके अक्रॉस जो चार्ज होगा दैट विल बी द चार्ज हेयर, ठीक है। सो चार्ज यहाँ पे अगर मेरा सेम है दिस x-0 इंटू c, सो सेम चार्ज मेरा ये होगा। तो ये चार्ज को सेम करने के लिए आई हैव टू हैव माई x 100 - x, यहाँ पे 100 - x अगर मेरा है, तो इसके अक्रॉस अब चार्ज कितना हो गया, इट इज़ 100 - 100 प्लस x इंटू सी। सो ये कैंसिल हो गया, सो यहाँ पे भी x इंटू सी हो गया, जो कि मेरा यहाँ पे था xc। सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पुटिंग सम डिफरेंट वेरिएबल y वी जस्ट पुट इट 100 - x। तो इसके अक्रॉस भी मेरा सेम चार्ज आएगा। अगर मेरे को यहाँ पे भी देखना है, सो आई कैन पुट इट x बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अगर यहाँ पे चार्जेस कुछ और होते हैं देन आई कैन पुट, कैपेसिटर के कुछ और वैल्यू होते हैं, आई कैन पुट इट y। बट यहाँ पे जो मेरा चार्ज आएगा, ठीक है, जो मेरा यहाँ से चार्ज आ रहा होगा वो भी यहीं से, बिकॉज सेम मेरे बिकॉज सिमेट्री है, तो आई कैन से कि यहाँ पे भी जो नोड पे जो मेरा पोटेंशियल होगा वो भी मेरा यहाँ पे पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा सेम, इफ आई पुट 100 - x हेयर, बिकॉज यहाँ पे भी चार्ज मेरा सेम फ्लो हो रहा होगा। यहाँ पे चार्ज सेम फ्लो कराने के लिए इन दोनों के बीच में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी x। ये पोटेंशियल डिफरेंस x कब आएगा, ये 100 है, व्हेन आई पुट 100 - x हेयर, ठीक है, तभी दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेरा x आएगा, बिकॉज यहाँ पे भी x है, सेम चार्ज फ्लो करेगा। सो दैट वे यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द पोटेंशियल इन द सिमेट्रिक सर्किट्स, ठीक है। तो अब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो विल डायरेक्टली से कि यहाँ पे जो चार्ज होगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा, तीनों का सम 0 होगा, तीनों का चार्ज निकालते हैं। यहाँ पे कितना होगा, x-50 इंटू सी, यहाँ पे कितना होगा x - x 100 - x ये वाला इंटू सी, ठीक है, और ये वाला कितना होगा ये वाला x-0 इंटू सी, ठीक है। इससे हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू 75 आ गए। आपको सारे चार्जेस पता लग जाएंगे, ये आपको सारे पोटेंशियल पता लग गए, ये वाला पता लग गया, ये वाला पता लग गया, ये वाला पता लग गया, ये वाला। तो नाउ यू नो ये वाला 50 है। नाउ यू नो द चार्जेस ऑन ईच एंड एवरी कैपेसिटर, सारे कैपेसिटर पे यू कैन गेट टू नो द चार्जेस बिकॉज यू नो द पोटेंशियल ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कुड एबल टू सॉल्व द सिमेट्रिक सर्किट्स। अब एक दो कॉन्सेप्ट और है हमारे, विल डू द कॉन्सेप्ट थ्रू नोडल एनालिसिस नाउ। ये मेरा मल्टीपल वोल्टेज सोर्स है। अगर मेरी अभी तक हमने वन सिंगल वोल्टेज सोर्स के साथ किए हैं, अब मल्टीपल के साथ करेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। जस्ट अप्लाई द ब्लाइंडली फॉलो दिस नोडल एनालिसिस, वो आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ईजी कर देता है। देख लेते हैं हम क्वेश्चंस, देख लेते हैं, 2-3 रह गए मल्टीपल वोल्टेज सोर्सेज का। सो सपोज ये 40 वोल्ट है और ये आपका 20 वोल्ट है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज़ योर 20 वोल्ट, दिस इज़ योर 40 वोल्ट। नाउ सपोज यू टेक, ये नोड है मेरा, ये बिकॉज इट इज़ नॉट कनेक्टेड, ओके, नोड कैन बी कनेक्टेड विद योर पोटेंशियल ऑल्सो और बैटरी ऑल्सो। इन द लास्ट हम लोगों ने लास्ट 2 स्लाइड्स में देखा था ना, इट शुड नॉट बी कनेक्टेड विद एक्सटर्नल, सो इट इज़ नॉट द केस, इट शुड बी विद मल्टीपल प्लेट्स होनी चाहिए जिससे कनेक्टेड है। इट शुड नॉट बी कि वो बैटरी से कनेक्टेड है, दैट्स माई मिस्टेक। सो इट इज़ नॉट कि बैटरी से कनेक्ट नहीं होगा, दैट इज़ अ कंडीशन फॉर नो, इट इज़ नॉट दैट, ठीक है। सो इट इज़ लाइक कि जहाँ जंक्शन होना चाहिए, जहाँ से मल्टीपल चार्जेस आ रहे होंगे, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट अ नोड, ठीक है।
सो सपोज़ ये मेरा नोड हो गया x, आई टेक इट कि यहाँ पे मेरा पोटेंशियल है, द पोटेंशियल इज x, बिकॉज यहाँ पे 40 है, इससे कुछ ड्रॉप हुआ होगा, यहाँ पे x आया होगा कुछ पोटेंशियल, ठीक है। एंड यहाँ से जो x पोटेंशियल आया होगा ये मेरा 20, ये मेरा ऐसे है 20, ठीक है। तो यहाँ से ड्रॉप होके यहाँ पे x-20 हो गया होगा, ठीक है, बिकॉज ये 20 है, यहाँ पे x-20। जब मैं स्विच ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पे x-20 आ जाएगा, और ये 40 है, ये मेरा इधर 0 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। नाउ वील हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आवर चार्जेस ऑन दीज कैपेसिटर। ये तीनों कैपेसिटर पे चार्जेस निकालने हैं। तो चार्जेस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये अगर मेरे को x पता लग जाए तो मेरे को वी नो 40 माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा x-0, और इसके अक्रॉस कितना होगा मेरा, इसके अक्रॉस तो वी कैन हैव दिस x प्लस x-20, x-20, ये x-20 से आ जाएगा मेरा, ठीक है। सो विद दैट वी कैन डू, सो सपोज वील पुट द वैल्यू ऑफ x हेयर, ठीक है। इसके अब हम चार्जेस देखेंगे, इसके क्रॉस जितना चार्ज जा रहा होगा x-40 इंटू 2, यहाँ पे कितना जा रहा होगा x-0 इंटू, बिकॉज 40 ये है, हमने इधर 0 ये कर दिया, 0 ये कर दिया, और ये 40 इधर आएगा, तो x-0 इंटू 4, ठीक है। और इधर कितना चार्ज जा रहा होगा, ये यहाँ से x था, x से ड्रॉप होके ये हो गया 20, तो बिकॉज इट इज़ ये यहाँ पे प्लस माइनस ये 20 था ना, तो यहाँ से जो इसका वोल्टेज ड्रॉप फर्दर, यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप आया होगा, ये x है, तो 20 ड्रॉप होके ये x-20 इधर आ गया, तो ये x-20 माइनस 0, x-20 माइनस 0 ये हो गया इंटू 8, तो इससे मेरा x की वैल्यू आ गई 120/7। अब x की वैल्यू आ गई, आई कैन एबल टू गेट ये माइनस दिस इंटू दिस कर लेंगे, x माइनस दिस, x-0 इंटू दिस करेंगे, चार्ज अक्रॉस ये आ जाएगा, और x-20 इंटू 8 करेंगे, आई विल गेट द चार्ज अक्रॉस 8, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा स्विचिंग का है, बट विल सॉल्व इट थ्रू एक और क्वेश्चन है स्विचिंग का, ये भी देख लेते हैं। इसमें जो हमारा स्विचिंग में और दिस एनर्जी गॉट चेंज, पहले ओपन है, ठीक है, ये हमारा S ओपन है, फिर S मेरा क्लोज हो गया, ठीक है। अगर मेरा S यहाँ पे क्लोज हो गया, दैट मीन्स जो मेरा चार्ज फ्लो करेगा यहाँ से, इन दोनों में स्प्लिट होगा चार्ज, फिर यहाँ पे आएगा, और फिर ये यहाँ से चला जाएगा, इसका मेरा 0 हो जाएगा कैपेसिटेंस, इसके थ्रू नहीं जाएगा, बिकॉज इट विल गेट अ फ्री पाथ, ये यहाँ से चला जाएगा चार्ज मेरा, इसके क्रॉस नहीं जाएगा मेरा चार्ज, ठीक है। कोई यहाँ पे चार्ज मेरा स्टोर नहीं होगा क्यू C में, यहाँ पे होगा, बिकॉज यहाँ से चार्ज आएगा, इधर दोनों में स्प्लिट होगा ऊपर नीचे, और फिर फाइनल यहाँ पे दोनों पे आके और ये यहाँ से जाएगा, ये दिस विल बी द सर्किट इन द फर्स्ट केस। तो पहले केस में अगर देखें, ये दोनों मेरा पैरेलल में है, ये मेरा सीरीज़ में, ये दोनों पैरेलल से मेरा कितना आ गया, C प्लस C, ये कितना आ गया 2C, और इंटू C डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो दैट इज़ माई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये तीनों का मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया मेरा व्हेन द सर्किट, व्हेन द S इज ओपन, दैट इज़ 2/3C। चार्ज कितना आ गया मेरा, जो यहाँ से फ्लो हो गया Q 2/3 इंटू C, ये मेरा दोनों सेम है, तो दोनों में इक्वल डिवाइड हो जाएगा, CE/3 CE/3, ठीक है। बिकॉज हमने देखा था ना चार्ज स्प्लिट किस तरीके से होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस, दोनों सेम है, तो हाफ हाफ चार्ज डिवाइड हो गया, और इसके अंदर कितना आ जाएगा टोटल 2/3 CE, ठीक है। सेकेंड केस में देखते हैं, जब ये क्लोज हो गया तो यहाँ पे तो चार्ज मेरा 0 हो गया, टोटल देखते हैं इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, C प्लस C 2C हो गया मेरा कैपेसिटेंस, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरा ये हो गया, और चार्ज कितना फ्लो होगा अब इससे, डेल्टा Q जो मेरा चार्ज आएगा दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ C, और यहाँ पे CE डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा। सो नाउ दिस इज़ माई 2CE। अब इसमें जो है मेरा विल टेक आउट के द डिफरेंस इन, पहले हम देखते हैं वर्क डन बाय, अभी हमें हीट डिसिपेशन निकालना है, तो हीट डिसिपेशन के लिए मेरे को इसके अक्रॉस डेल्टा Q कितना जा रहा है, डेल्टा Q, ठीक है, एक तो ये निकालना है, और फिर वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा U, ठीक है। तो ये कितना मेरा इस वाले केस में और इस वाले केस में कितना मेरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ माई कैपेसिटर C। पहले ये वाला केस देखते हैं, डेल्टा U कितना फ्लो हो रहा है, यहाँ पे 2C है, और यहाँ पे मेरा 2/3C है, तो डेल्टा U आ गया 2 माइनस दिस, सो डेल्टा Q आ गया मेरा 4CE/3 इंटू, मैं करूँगा इसको E से मल्टीप्लाई, दैट विल गिव मी माई वर्क डन बाय द बैटरी, दैट विल बी इज़ गोइंग टू स्टोर द एनर्जी, स्टोर करेंगे हाफ C इक्विवेलेंट इंटू E स्क्वायर करेंगे इसका, और इसका करेंगे, पहले का C इक्विवेलेंट कितना आ गया, इसका 2C आ गया U फाइनल वाले का, और इसका आ गया मेरा दिस इज़ माई 2/3C इंटू E स्क्वायर। अब दोनों को माइनस करेंगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा U एस 2/3C स्क्वायर, ठीक है। मेरा डेल्टा U आ गया, वर्क डन ये आ गया, एंड आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हीट एज डेल्टा W माइनस डेल्टा U, ठीक है, हीट वी कैन गेट द वैल्यू।
इसको इसमें से माइनस कर, इसको डेल्टा यू को माइनस कर देंगे इसमें से, विल गेट द वैल्यू ऑफ आवर हीट। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देन विल रैप इट अप, इट्स ऑलरेडी मोर देन 1 आवर, विल रैप इट अप। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेरे को चार्ज क्यू के अक्रॉस जो मेरा 5 माइक्रोफेरेड का है उसके अक्रॉस मेरे को चार्ज दे रखा है। ठीक है, इससे मेरे को पोटेंशियल पता लग जाएगा। क्यू इसके अक्रॉस पोटेंशियल चार्ज है मेरा 10 माइक्रोकूलम, सी मेरा ये है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज़ क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा क्यू बाई सी, क्यू कितना मेरा 10 बाई 5 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप आ गया v बाई 2, पर ये तीनों के अक्रॉस यही होगा क्योंकि ऑल 3 आर इन पैरेलल। तो यहाँ पे जो मेरा अगर नोड देखूँ मैं तो इसका पोटेंशियल आ गया मेरा v-2, इन तीनों का आ गया मेरा v, इन तीनों का मेरा v आ गया, और मेरे को फाइनली निकालना है va माइनस vc इन दोनों के बीच में। तो ये मेरा v हो गया, ये मेरा v हो गया। ठीक है, c मैं ले लूँ, सपोज आई टेक द वैल्यू y हेयर। ठीक है, y ले लो c की, एंड ये यहाँ पे भी y हो गया, ये भी y हो गया, और ये मेरा हो गया यहाँ से ये 0 हो गए। ठीक है, सो नाउ आई नो आई हैव स्प्लिट माई पोटेंशियल, आई अप्लाई द, एक यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं हम, ये चारों के थ्रू जो होगा मेरा नेट जंक्शन पे चार्ज 0 होगा, और एक यहाँ पे लगाते हैं इस वाले पे, इधर इधर। ठीक है, इन दोनों से मेरा आई गेट द वैल्यू। पहले हम इस वाले जंक्शन पे लगाएंगे, इफ़ वी टेक दिस एज ए जंक्शन, और सेकंड विल टेक दिस एज ए जंक्शन, वी अप्लाई द नोडल एनालिसिस। ठीक है, पहले हम लगाते हैं इस वाले जंक्शन पे, यहाँ पे लगाते हैं, तो y माइनस वी इंटू 3, वाई माइनस वी इंटू 3, इधर कितना हो गया y माइनस 0 इंटू 4, एंड y माइनस 2, y माइनस 0 इंटू 2, तो इससे मेरा y आ गया v बाई 3। अब मेरे को v बाई 3 निकालना है, वो हम यहाँ पे लगा के निकाल लेंगे। y आ गया मेरा v बाई 3। नाउ विल फाइंड आउट कि यहाँ पे कितना होगा मेरा ये हो गया मेरा v माइनस 2 माइनस v माइनस 2 माइनस वी, और ये तीनों ऐड अप हो जाएंगे 3, 5 और 4, बिकॉज तीनों के अक्रॉस v माइनस 2 माइनस वी होगा। सो ये कैंसिल हो गया -2, और यहाँ पे आ गया मेरा तीनों का 5 + 3 12 आ गया, और इसके अक्रॉस कितना होगा v माइनस 2 माइनस 0 इंटू 4। ठीक है, यहाँ से मैंने सॉल्व किया, v की वैल्यू मेरे पास आ गई 8, v की वैल्यू 8 आ गई, आई पुट द वैल्यू हेयर। सो y मेरा आ गया 8 बाई 3, v की वैल्यू 8 आ गई, y आ गया आपका 8 बाई 3। ठीक है, सो va माइनस वी भी करेंगे, तो va कितना था मेरा, ये va इज योर v, a और c के बीच में निकालना ना, तो दैट इज़ v माइनस वी बाई 3 यहाँ से आ गया, तो आपका नेट आ गया 2 v बाई 3, और v की वैल्यू आप 8 बाई 8, v की वैल्यू आपकी 8 आ गई, 8 डाल दो यहाँ से, यू विल गेट द फाइनल वैल्यू va माइनस वी सी एस 5.33। ठीक है, सो हमने नोडल एनालिसिस से कर लिया। यू कैन सॉल्व इट थ्रू पैरेलल सीरीज से भी कर सकते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट वन, बट वी हैव सॉल्व इट थ्रू नोडल एनालिसिस। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने कॉन्सेप्ट देखा था, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स देख रहे थे हम लोग। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में वी हैव सीन व्हाट इज़ द ग्रुपिंग इन सीरीज, व्हाट इज़ द ग्रुपिंग इन पैरेलल, और इसके बेसिस पे वी हैव सीन इन द सीरीज वी हैव सीन के चार्जेस कांस्टेंट, पैरेलल में हमने देखा पोटेंशियल ड्रॉप इज़ कांस्टेंट अक्रॉस द कैपेसिटर। इसके अक्रॉस फिर हमने, जब हमारा चार्ज कांस्टेंट है, वी हैव सीन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। इसके अंदर हमने चार्ज स्प्लिट किया, क्रॉस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा क्रॉस ईच कैपेसिटर। फिर हमने डाइलेक्ट्रिक लगा के देखा, डाइलेक्ट्रिक के लगा के वी हैव सीन के पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे लगता है हमारा विद द डाइलेक्ट्रिक। देन वी हैव फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला थ्रू द रिडक्शन मेथड। देन फाइनली वी हैव डन सम क्वेश्चन ऑन द बेस, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के सीरीज और पैरेलल के लगा के वी हैव डन द स्विचिंग ऑफ सर्किट्स के स्विच ओपन है, तो in that case what will be my charges on the capacitor, and then when the switch is closed what will be my charges on the capacitor. Then we have also seen the heat dissipated before switching and after switching, that concept we have seen in this. फिर हमने नोडल एनालिसिस देखा कि अगर हमारे सर्किट थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएं, जहाँ पे हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के थ्रू नहीं कर सकते रिजॉल्व उसे, तो हम नोडल एनालिसिस लगा के करते हैं। दैट इज़ मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक इन सॉल्विंग एनी डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स सर्किट ऑल्सो। हमने उसी के थ्रू हमने फिर एक और कॉन्सेप्ट बनाया व्हीटस्टोन एंड ब्रिज का, कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, एक सेट ऑफ सर्किट होता है 5 कैपेसिटर का। सो वी हैव सीन देयर अरेंजमेंट कि किस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। फिर उसका एक स्पेशल केस होता है हमारा, के स्पेशल दैट वन इज़ जनरल व्हीटस्टोन ब्रिज हमने देखा। फिर एक स्पेशल केस होता है वेयर अगर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वी विल रिमूव वन आर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, जिससे हमारा जो सर्किट होता है वो और ईजी हो जाता है। ठीक है,
सो ये हमने कॉन्सेप्ट देख लिया. टुडे वी हैव फिनिश्ड ऑल दिस कॉन्सेप्ट. तो अब हमारा कैपेसिटर में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लान कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू सी वोल्टेज लॉ देखेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज कॉन्सेप्ट देखेंगे. ठीक है, उसके बेसिस पे विल सी सम क्वेश्चन. उसके बाद हमारा वो रह जाएगा चार्ज इन ए सर्किट, सॉरी करंट इन ए सर्किट रह जाएगा विद द कैपेसिटेंस. बिकॉज अगर आपका एक बार आपका चार्ज हो गया कैपेसिटर तो करंट तो ज़ीरो हो जाता है, बिकॉज इंस्टेंट होता है ना, स्टडी स्टेट रीच कर गया. बट कैपेसिटर अगर लीक करना शुरू कर दे, कैपेसिटर की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज़ करना शुरू हो जाए तो चार्ज तो करंट आ जाता है. तो विल सी दैट. और फिर एक मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया हमारा कि व्हेन एवर वी आर पुटिंग अ डाइलेक्ट्रिक इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो देयर इज़ अ फोर्स with which the dielectric will be pulled inside. So we'll see the value of those force in multiple cases when the battery disconnected and the battery is connected. So ये concept हम next videos में, next lecture में देखेंगे. उसके बाद फिर हम थोड़े एडवांस के क्वेश्चंस लगाएंगे. we'll see some questions from the Irodov and all. So उसके बाद एडवांस के क्वेश्चन लगाते हैं. तो देखते हैं हम नेक्स्ट 2 लेक्चर में हो जाना चाहिए हमारा कैपेसिटेंस. विल रैप इट अप इन नेक्स्ट 2 लेक्चर. हो जाना चाहिए हमारा नेक्स्ट 2 लेक्चर में कैपेसिटेंस. तो ओके, सो ऑल राइट, थैंक यू.